Delhi. I'm Amok Tizare from IM Foundation for Entrepreneurship Development, and we are here gathered for this event of MSSIDC called Project RAMP. RAMP is a Raising and Accelerating MSME Performance. ये एक वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड इवेंट है सर एवरीवन एंड इसका ऑब्जेक्टिव है हमारे एमएसएमईज का कैपेसिटी बिल्डिंग करना सो टुडे वी हैव गॉट आवर टू डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट सी प्रणव जोशी ये मेंटर हैं आईएम नागपुर इनफेड में एंड वी हैव श्री सचिन जयजूदिया जी ही इज आवर अनदर स्पीकर टुडे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स अंडर जीएसटी के ऊपर बात करेंगे सो नाउ I would like to request Naresh sir to welcome Pranav Joshi sir with a floral bouquet and memento. Naresh sir, I'd like to I mean, sir, I'd like to request you again to welcome Sachin Jayadudya sir uh, with a floral bouquet and the memento. देना पड़ेगा So, without much delay, I'd like to invite Shri Naresh Jagodia ji to deliver the opening remarks. Over to you, sir. Thank you, Amok. For all the practical purposes, Amok was associated with VI only, and we still think you are the part of VI, and we will continue with that. Today's speaker, a young and a very dynamic chartered accountant. He's a partner of renowned and one of the oldest firm of Nagpur, PG Joshi and Company. That's a brand itself. He's a partner, and let me tell you, he's a very expert speaker also. I think जितने लोग यहाँ होंगे, no one can guess his age actually. I was surprised when he spoke कि 2011 में he is qualified as a chartered accountant, and it's really pleasure to have you here for this actually. Welcome Pranav. And Sachin is our own convener for the Tax and Corporate Law Forum and working very hard in the GST and total ready रखने का GST. जब भी कोई GST का कोई भी issue आता है तो सीधा सिंपल है कि कोई एक्ट या लॉ देखने की जरूरत नहीं है. Whatever Sachin speaks, that's a law. Welcome Sachin for this session. We welcome you all, and I welcome you all for this session. Learning is a never ending process actually, and there are so many changes, so many amendments, and so many schemes of the governments are there. Normally we are not aware of that also. Okay? To cover that issues, Sachin is there who will cover speak on the इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जीएसटी. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में सबसे बड़ा इश्यू है देखा जाए तो 2017 में लॉ आया, लेकिन आज 8 साल हो गए, लेकिन आज भी इतने सारे चेंजेस है. और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो डिमांड आ रही है जीएसटी की वो बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ द आईटीसी आ रही है. तो ही विल कवर एक शॉर्ट में हम लोग कवर करेंगे. प्रोग्राम को बहुत फॉर्मल तरीके से नहीं रखेंगे, एक इंटरैक्टिव रहते हैं, मिलके जो डिस्कशन है वो हो जाए. आपके जहां जब जो क्वेश्चन आ रहे हैं यू कैन इंटरैक्ट विद सचिन. एंड देन वी हैव प्रणव. प्रणव विल बी कवरिंग ऑल द स्कीम्स. अभी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं और बहुत सारे नए नए गवर्नमेंट चाहती है एक्चुअली टू मेक अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. गवर्नमेंट हैज लेट डाउन द प्रोजेक्ट, और जहां पे भी लगता है गवर्नमेंट को ये सेक्टर वीक हो रहा है वहां पे गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स आ रही है. स्टार्टअप इज वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी फंड्स, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है. प्रणव विल बी कवरिंग ऑल दिस पार्ट्स. फ्रेंड्स, आई नो वी आर हियर टू लिसन टू बोथ दिस स्पीकर्स. ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए विल डायरेक्टली जंप टू टॉपिक. First of all, I would request Pranav to cover his part, and I welcome you all. Keep attending the program at VI. Thank you, friends. Hello everyone. Thank you, sir, for the introduction and having me here. Thank you, Amog and InFed, for organizing this session. ये रैम के थ्रू जो सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं, we have been conducting these sessions for some time now. तो ये करीब तीसरा या पांचवा सेशन है जो हम एमएसएमई के लिए फाइनेंशियल नॉलेज या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके डिस्कशन कर रहे हैं.
the whole idea behind this discussion is to understand the importance of financial management in a company and when, or what role can working capital play in your day-to-day operations. तो बहुत बार जब हम फाइनेंशियल नॉलेज या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल नॉलेज नॉर्मली इज अवेलेबल. तो entrepreneurs or founders who have been working or running their organizations for decades, उनको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में पता होता है कि फाइनेंसेस कहाँ चलते हैं. The challenge comes when we talk about managing that information and taking decisions based on the information which is available. तो दिमाग में सब कुछ है पर उसके बेसिस पे डिसीजन लेके आगे कैसे बढ़े में कहीं ना कहीं गैप रह जाए. And that is what I wanted to discuss today. So before we move ahead and discuss what is the agenda or what we want to cover, I had framed few questions which I wanted all of you to go through and answer them for yourselves. और एक बार आपने वो पढ़ लिए तो फिर we can discuss. Is it legible? Yes. Yes. By content. Yeah. प्रणव सर, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का हमारे पास ईमेल आईडी एंड डिटेल्स है. So is it possible if you can send I can. these questions to Sure. them for their better understanding your mail as well? Yes. Please. दोनों जगह कर देंगे, मेल भी कर देंगे और हमने जो वीआई की फेसबुक पेज है और बाकी कंटेंट्स है उसमें भी हम लोग कर देंगे, वेबसाइट पे कर देंगे. शेयर विथ यू ऑल. यस. तो could you go through? तो मुझे आपसे जवाब नहीं चाहिए. How many of you think that majority answers are yes? कितने लोगों के मेजॉरिटी आंसर नो है? So most the experience has been that mostly majority answers turn out to be negative. अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे मेजॉरिटी आंसर्स नेगेटिव है या कहीं ना कहीं हमें ये परेशानी है, वी आर फेसिंग सम लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम्स विद आवर वर्किंग कैपिटल, तो उसका सॉल्यूशन क्या है and how can we probably manage our working capital better? The whole agenda behind today's discussion is we want to discuss financial statements, we want to discuss use of capital, what is working capital,
what are different types of profits, and then फाइनेंसिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या मदद हो सकती है, वो लास्ट में डिस्कस करें. बट द पॉइंट दैट आई वुड वांट टू मेक बिफोर वी स्टार्ट इज that managing of financial information starts with capturing financial information. जब तक के financial information is not captured, तब तक के आपको उसके ऊपर से decision making लेना करना बहुत मुश्किल है. You cannot take any decisions based on information that you don't have. तो the basis of all this information comes to be financial statements. तो अगर हम एक एवरेज एमएसएमई सेक्टर में जब काम करते हैं, तो why do we build financial statements? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो क्यों बनाते हैं? What is your opinion on that? To get a fair idea about how we are performing profit or loss wise, then what are our assets, what are our liabilities, to get a picture. तो ये सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने बार बने? Normally once a year. तो is it sufficient that we look at what is the affairs of the company once a year? अच्छा, कब बनते हैं? श्योर, सितंबर में. तो साल खत्म होने के बाद मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बनते हैं एंड उसके बेसिस में अगर मैं देखूं कि व्हाट आर द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, देन शायद आप थोड़ा लेट चल रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि कंपनी के अफेयर्स क्या है, राइट? तो प्राइमरी आंसर्स व्हिच यू गेट on why financial statements are built, number one answer is compliance. क्योंकि लॉ बोलता है कि हमें बुक्स रखने हैं, इसलिए हम बनाते हैं. Because Companies Act requires you to build financial statements, you build financial statements. बैंक के लिए लगते हैं क्योंकि बैंक मांगता है. तो अगर लिमिट्स चल रहे हैं, बैंक के साथ लोन्स है, डेट है, तो आई नीड टू सबमिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द बैंक, इसीलिए मैं बनाता हूँ. टैक्स के लिए लगता है, कंप्यूटेशन करना पड़ता है, इनकम टैक्स कितना भरना है, उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगता है. तो बिजनेस इनसाइट कहाँ है? थोड़ा मुश्किल ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एज फार एज आई एम श्योर यू विल एग्री that the general trend is that financial statements are built at the end of the year or after the year is over. तो मार्च में साल खत्म होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते ही है जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, क्योंकि बैंक को चाहिए, क्योंकि टैक्स कंप्यूटेशन करना है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स ने मांगे हैं. तो कहीं ना कहीं बिजनेस इनसाइट और टू अंडरस्टैंड वेदर वी आर डूइंग राइट, वेदर द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज ओके और नॉट, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आप सब लोग फाउंडर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, यू हैव बीन इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज नो डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज देयर, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट इज बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने में बहुत टाइम लग जाता है जब तक के बनते हैं, और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होना मुश्किल हो जाता है. तो अब इसमें जो की एस्पेक्ट है, which I think is a key takeaway, is that all these stakeholders, your compliance, income tax, GST, banks, the entire ecosystem in which you are working, this entire ecosystem relies on your financial statements and your books of accounts, except you. जिसका धंधा है वो छोड़ के आजू बाजू का सारा इकोसिस्टम उसके बुक्स पे डिपेंड करता है, which is a very, I would say, not a good situation to be. तो अगर मेरा सारा इकोसिस्टम मेरे बुक्स पे डिपेंड करता है और उस पे रिलाय करता है, उसके बेसिस पे एनालिसिस करता है, और मैं नहीं कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं गैप तो मेरे में. द फर्स्ट स्टेप इज for financial management is to have that financial information available at the right time. It is always recommended that financial closures, financial statement, balance sheet, profit and loss are built at least quarterly, if not monthly, ताकि एक रियल टाइम बेसिस पे एटलीस्ट ये समझे तो कि चल क्या है. और इसीलिए बहुत बार फाउंडर्स या प्रमोटर्स के जो दिमाग में प्रॉफिट है, ये बुक्स में नहीं है.
Because books में there are so many other adjustments you need to follow accounting standards, there are laws, regulations. कि जो दिखता है in the end कुछ और ही आता है. And then we are working with numbers in our head which are different. So again there is a gap which needs to be bridged somewhere. पर उसके लिए मुझे लगता है important ये है कि for non-finance people, more importantly, you realize the importance of the three statements that are generated as part of your financial statement. तीन स्टेटमेंट बनते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो. उसमें से भी कैश फ्लो बनता नहीं है क्योंकि लॉ के हिसाब से इट इज नॉट रिक्वायर्ड. एज पर लॉ ओनली बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज रिक्वायर्ड, तो कोई कैश फ्लो बनाना है. बट इफ यू सी फ्रॉम अ डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव, कैश फ्लो इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल. प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो फिर भी ठीक है, पर कैश फ्लो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल बनता है. Now, what I want to discuss over the next, say, 30 minutes is how can these three statements play a role when you want to manage your finances? Again, the prerequisite being they are available on a more real-time basis. तो एक sample balance sheet है. Again, because you have been in business for so long, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नंबर समझ में नहीं आए. तो एज बैलेंस शीट देख के सबको समझ में आता है कि हो क्या है. What we want to discuss right now is, if this is a balance sheet that you have as a promoter, what is it that you would want to do to make it better? Simple balance sheet है, कुछ लोन है, कुछ असेट्स है. What I want you to tell me is कि इस बैलेंस शीट को मैं बेहतर कैसे बना सकता हूं. Is there any transaction I can undertake to make the balance sheet look better? तो थोड़े नॉन फाइनेंस लोगों को मौका दीजिए. बैंक ओडी कम करेंगे थोड़ा. बैंक ओवरड्राफ्ट कम करेंगे. ओके. ट्रेड पेपर कम करने पड़ेगा. तो जो मेरे पास कैश बची है उसमें से मैं कुछ ट्रेड पेएबल वापस करूं, इज व्हाट यू आर सेइंग. ओके. तो आइदर ओवरड्राफ्ट या पेएबल में से रिड्यूस सम ऑफ द लायबिलिटी. एनीबॉडी हैज अ डिफरेंट ओपिनियन? सर, इन्वेंटरी तो जो बिकेगी तो कम होगी, वो तो आप वैसे कम नहीं कर पाओगे. मतलब वैसे हो जाएगी, बट वी डोंट वांट टू डू इट दैट वे. लोन कम करेंगे. तो सर शेयर बेच के थोड़ा लोन भी कम कर देंगे. शेयर कैसे बेचेंगे सर? वो इक्विटी. नहीं, वो तो मेरे पास पैसा है, तो लिक्विडिटी तो मेरे पास 750 की है, 730. वर्क ऑन योर रिसीवेबल्स. तो अगर इफ वी सी बेसिक बैलेंस शीट एज अ कॉन्सेप्ट, मतलब अगेन देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, तो हर एक का उसको देखने का नजरिया अलग है. बट इफ यू सी द बैलेंस शीट एंड डिवाइडेड इनटू द टाइप्स ऑफ कैपिटल दैट एनी कंपनी हैज, सबसे बेसिक गोल्डन रूल है कि जिस तरीके का कैपिटल है उसको उस तरीके के एप्लीकेशन में लगे. ये गोल्डन रूल है. तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल है तो लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन कीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल है तो शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन. नाउ इफ यू हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल, डेट, इक्विटी, ensure that that is deployed in long term use, which could be any capital asset, plant, property, land, building, जिसमें से आपको रिटर्न 10, 15, 20, 25 साल में आने वाला, so that the return from those assets will match the liability that is there. तो मैं टर्म लोन भी अगले 10-15 साल में रिपे करूंगा, प्लांट मशीनरी में से रिटर्न भी अगले 10-15 साल में आएगा, तो कैश फ्लो मोटा मोटा मैच करके आई कैन सस्टेन. And if my source of capital is a short term source, which is a OD or a CC या trade payables है,
तो उसके अगेंस्ट मेरे पास एप्लीकेशन में शॉर्ट टर्म असेट्स होने चाहिए विच कुड बी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। अगर ये मेरा मोटा मोटा मैच होता है देन आई एम गोल्डन। मुझे और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज फार एज मेरे फाइनेंसेस कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स ऑन अ ब्रॉड बेसिस। तो इफ वी गो बैक टू द बैलेंस शीट, अगर आप बैलेंस शीट में वापस जाके देखेंगे तो माय करंट एसेट्स एंड माय करंट लायबिलिटीज आर ओके। मेरे करंट एसेट्स जो है इन्वेंट्री, कैश और ट्रेड रिसीवेबल मिला के 3430 है, ये मेरा एप्लीकेशन है। इसके पीछे मेरा सोर्स ऑफ फंड क्या है? करंट जो शॉर्ट टर्म सोर्स है 1200 रुपए। तो जो बैंक भी आपको मांगता है करंट असेट रेशियो, करंट रेशियो क्या है? मेरा करंट रेशियो आता है 3 के करीब, 2.8 कुछ आए, विच इज नॉट द वर्स्ट, इट इज स्टिल एक्सेप्टेड। सबसे बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है पर बुरा भी नहीं। और बट इफ यू लुक एट लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन, तो मेरा लॉन्ग टर्म सोर्स में पैसा बहुत पड़ा है, उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन सिर्फ 3600 का। तो कहीं ना कहीं सोर्स और एप्लीकेशन में मिसमैच। if I put the same numbers in a different way, तो मेरा टर्म लोन है जिसका मैंने यूज किया है फिक्स्ड असेट्स और लॉन्ग टर्म असेट्स खरीदने के लिए। तो मेरा लॉन्ग टर्म टोटल एप्लीकेशन है 3600 रुपए, जिसके अगेंस्ट मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन है 3000। तो अगर आप देखेंगे बचा हुआ 600 रुपया इक्विटी कंट्रीब्यूशन है, ऐसा मान सकते। इन दैट केस माय डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मनी इज 5, विच इज वेरी हाई। तो आपका लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन के लिए जो पैसा यूज हुआ है उसमें डेट बहुत ज्यादा है। वही अगर मैं वो लोन रिपे कर दूं तो मेरा डेट इक्विटी भी सुधरता है और मेरा करंट रेशियो भी सुधरता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट मनी विच वाज लाइंग अराउंड टू रिपे माय ओवरड्राफ्ट और माय ट्रेड पेएबल्स, इट कुड बी अ बेटर आइडिया टू पे ऑफ सम ऑफ माय लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि कहीं ना कहीं रेशियो मैच नहीं करते। और दिस इज नॉट समथिंग विच यू, बैंक भी यही मांगता है। अगर आप बैंक के पास भी जाओगे कि तो वो भी रेशियो ही मांगेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस व्हाट द बैंक इज गोइंग टू सी। कहीं ना कहीं वो बैंक भी यही देखेगा कि आपका सोर्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है, और सोर्स और एप्लीकेशन के हिसाब से रेशियो बैठ रहे हैं। लेकिन फर्क जो पड़ रहा है, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट समटाइम योर गट फीलिंग और व्हाट योर एक्सपीरियंस टेल्स may be different from what you can do basis your information. तो जो जो आपको कभी कभी गट फीलिंग आता है यार पैसा है तो ये वापस कर देते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स पे कर दो, ओवरड्राफ्ट को भर दो, तो एट टाइम्स द ओवरड्राफ्ट वुड बी अ गुड थिंग टू हैव। उल्टा अगर मैं यही नंबर लेके बैंक के पास जाता हूँ और उनको बोलता हूँ मुझे थोड़ा सीसी ओडी और दे दो, तो मे बी आई कैन टेक मोर ओडी एंड रीपे माई लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि लॉन्ग टर्म वैसे भी काफी ज्यादा लेवरेज। बट कहीं ना कहीं जो नुआंस में डिसीजन लेना है ये गट से नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस से नहीं आता, क्योंकि द वे यू थिंक इज नॉट दैट, पर्सपेक्टिव वो नहीं। तो इफ यू हैव इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल ऑन अ मोर रियल टाइम बेसिस, दीज डिसीजंस कैन बी टेकन फास्टर एट द राइट टाइम। वो पूरा साल खत्म हो जाने के बाद जब बैलेंस शीट बनेगी उसके बाद कुछ कर नहीं सकते। And that is also true for income tax compliances, GST, सबके लिए it is nowadays there is nothing that can be done post fact. जो है वो ड्यूरिंग द ईयर होना है, साल खत्म हो गया, डेट निकल गई, उसके बाद खास कुछ कर नहीं सकते। तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है कि मैंने कैश क्रेडिट लिया, उसका एप्लीकेशन होना चाहिए था इन्वेंट्री बनने में, पर मेरा कैश क्रेडिट इन्वेंट्री में नहीं जाता, डाइवर्ट हो जाता है। आइदर आई डू सम कैपिटल एक्सपेंशन और कोई एसेट खरीदी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। The point is a short term source money is not used for short term application. It is used maybe, मतलब इसके अलावा कभी कभी एफडी भी बनती है। तो अगर सामने मुझे बैंक गारंटी देनी है, परफॉर्मेंस गारंटी देनी है, उसके लिए एफडी चाहिए, तो कहां से आएगा पैसा? फिर सीसी से ही पैसा आता है। तो सीसी से पैसा निकलता है, एफडी बनती है, सीसी से पैसा निकलता है, मार्जिन मनी जाती है। नाउ दिस मार्जिन मनी, दिस एफडी इज अ लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन। ये डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, और ये 2-4 साल तो नहीं आने वाला वापस। पर मुझे मेरी सीसी तो हर 6 महीने रोटेट करनी है, हर 3 महीने रोटेट करनी है। नाउ अगेन देयर इज अ मिसमैच ऑफ सोर्स एंड यूटिलाइजेशन।
और जैसे जैसे ये मिसमैच बढ़ते जाता है आपका वर्किंग कैपिटल में तकलीफें बढ़ने लग जाती है। लेट अस डिस्कस दैट बाय अ सिंपल एग्जांपल। अगर आप वर्किंग कैपिटल देखेंगे तो सिंपल सी साइकिल है, विच नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट स्टार्ट्स विथ आपको परचेस ऑर्डर सामने से आने के बाद यू गो टू योर सप्लायर। सप्लायर से माल जब खरीदते हैं तो उनके तरफ से हमें कुछ से 45 डेज का क्रेडिट मिलता है। फिर वो रॉ मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स से मे बी इन अनदर 30 डेज, जब वो इन्वेंट्री में पड़ा है। और फिर मैंने बेचने के बाद सामने वाले को 60 दिन का क्रेडिट दिया। तो सारा मिला के मेरा 30 + 60 का पैसा फंसा है, उसमें से 45 डेज तो क्रेडिटर मेरा फंड कर देता है। तो करीब करीब 45-50 दिन का पैसा मेरा साइकिल में फंसा है, जो बैंक विल फंड फॉर। नाउ इफ द बैंक फंड्स दिस मनी, then I can rotate this money, keep on rotating the money and pay off my creditors, take new credit and the cycle continues. अब इसी साइकिल में जब आपको पैसा बैंक देती है, तो जो भी अमाउंट बैंक से आता है, तो समझ लीजिए लेफ्ट साइड में जो बॉक्स है ये ड्रॉइंग पावर का कैलकुलेशन करता है। तो मेरा 3,000 रुपए का करंट असेट बना, जो कि मेरा से वॉज सेल। उसमें इन्वेंट्री ऐड कर लीजिए, उसमें से लायबिलिटी जो ट्रेड पेएबल्स है उसको हटा दिया, तो एक वर्किंग कैपिटल की गैप क्रिएट होगी। ये वर्किंग कैपिटल की गैप का मार्जिन रख के बैंक से विल फंड अबाउट 75%। नाउ इफ बैंक इज रेडी टू फंड दैट 75%, तो इफ यू ब्रेक दैट 75% कि ये पैसा मुझे जो बैंक से आया है ये किस लिए आया है, तो मोटा मोटा इफ यू सी, बैंक फंड्स अबाउट 100% ऑफ योर डायरेक्ट कॉस्ट, बैंक फंड्स मोस्ट ऑफ योर ओवरहेड्स। आपका सिर्फ प्रॉफिट है जो बैंक फंड नहीं करता। तो अगर मेरा, इफ यू सी द जो ऊपर वाला मरून बॉक्स है, अगर मेरा प्रॉफिट 25% है और 25% की मार्जिन है, तो बैंक आपका पूरा खर्चा फंड कर चुकी है। और मतलब entirely your direct cost and indirect costs have been funded by the bank. Apart from that, bank also funds most of your inventory. जो भी क्रेडिटर के अलावा जो बचता है, जो पेड इन्वेंट्री है, वो भी बैंक फंड करती है। बैंक फंड क्या नहीं करती, आपका प्रॉफिट। तो जो मार्जिन आप बैंक छोड़ने बोलती है, दैट इज एसेंशियली द प्रॉफिट पोर्शन। As long as you have a healthy profit, bank is going to fund all your costs to your working capital alone. अगर मार्जिन कम हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको इक्विटी पोर्शन बढ़ाना पड़ेगा, आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, और वहां पे वर्किंग कैपिटल का फंडिंग कम आएगा। बट दिस इज बेसिकली हाउ द वर्किंग कैपिटल फंड वर्क्स, या उसका यूटिलाइजेशन हम कैसा कर सकते हैं। अब इसी का अगर आप एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई हैव क्रिएटेड। सबसे लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस रखा है कि 5,000 रुपए का रेवेन्यू बना साल में, उसके अगेंस्ट 2,500 रुपए का मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है, लेबर मटेरियल सब मिला के, और 2,000 रुपए के ओवरहेड्स, बिजनेस एक्सपेंसेस। मेरा 500 रुपए का प्रॉफिट निकला, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा है। अभी ये जो कॉग्स है, जो 2,500 रुपए मुझे बाहर रॉ मटेरियल लेबर के लिए देना है, आई कैन गो टू द बैंक एंड आस्क द बैंक टू फंड दैट एज पार्ट ऑफ माई वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या बनता है, 5,000 जो रेवेन्यू है, अज्यूम करते हैं वो मेरा रिसीवेबल है, तो 5,000 का रिसीवेबल है, उसमें से 2,500 रुपए का करंट लाइबिलिटी। अगर आप टॉप राइट वाला टेबल देखेंगे तो 2,500 रुपए की वर्किंग कैपिटल गैप बनती है, उसमें से 25% मार्जिन काट के 1875 बैंक ने फंड कर दिया, बैंक ने आपको पैसा दे दिया। अगर आप बीच वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, 5,000 रुपए का रेवेन्यू था जो सामने से आया, 1875 बैंक ने दिया। ये टोटल पैसे में से 2,500 रुपए मैंने खर्च कर दिए मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस में, 2,000 रुपए का मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्च किए, 1,875 रुपए बैंक को वापस कर दिए, एंड में 500 रुपए में घर ले गए। तो मेरा कैश फ्लो में जो पैसा बचता है 500 रुपए, और जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है 500 रुपया, ये मैच हो गया। मैं भी खुश हूँ, बैंक भी खुश है, मैंने इंटरेस्ट भी दे दिया, बैंक का पैसा भी भर दिया, सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एट द एंड ऑफ माई एंटायर साइकिल, इफ यू सी द एंटायर, यहाँ जो ये जो लिमिट है, ये पूरी की पूरी लिमिट मेरे अगले साइकिल के लिए अवेलेबल है। 1,875 रुपए फिर से बैंक दे दे,
अब सेकेंड सिनेरियो देखते हैं। मुझे समझ में आया कि यार प्रॉफिट तो बहुत हो गया है, 500 रुपए का प्रॉफिट है, वो बहुत टैक्स लग रहा है। तो मैंने क्या किया, जस्ट टू बी सेफ कि इतना टैक्स ना भरना पड़े, मैंने मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में 300 रुपए के खर्चे ऐड कर दिए, ताकि मेरा प्रॉफिट उतना ना दिखे। फॉर वॉट एवर XYZ रीजन, XYZ एक्सपेंसेस, उसमें मुझे नहीं जाना। अब वो मैंने एक्सपेंसेस डाल के प्रॉफिट कम कर दिया, बट वो एक्सपेंसेस इन सर्टेन वे फिक्टिशियस है, ऐसा कुछ बहुत बिजनेस का खर्चा हुआ नहीं। तो मेरे कैश फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कैश फ्लो देखेंगे तो 300 रुपए का एडिशनल खर्चा करने के बाद भी मैं 200 रुपए घर लेके जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। पूरा साइकिल खत्म होने के बाद पूरी लिमिट खाली पड़ी है, मैं फिर से यूज कर सकता हूँ अगले साइकिल के लिए। अब दिक्कत कहाँ आएगी, समझ लीजिए रेवेन्यू मेरा कम हो गया, पिछले टाइम बार तक 5,000 था, अभी 3,000 हो गया, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन लेगेसी प्रॉब्लम्स या जो भी है, कुछ चीजें हैं जो चेंज नहीं होती, विच आई थिंक यू वुड अप्रिशिएट। तो अभी भी मेरे पास कॉस्ट कम हो गया, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन ही कम है, सेल कम है, मेरा खर्चा कम हो गया, मैंने सब कम कर दिया, बट मेरा नॉन बिजनेस एक्सपेंस अभी भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है, क्योंकि अब वो चल ही रहा है पहले से। तो मेरा प्रॉफिट खत्म हो गया क्योंकि रेवेन्यू गिर गए। अब इसके बाद क्या हुआ, आई कुडंट रीपे द बैंक। 1875 जो बैंक से लिया था वो वापस नहीं कर पाए। अगर मैं 1875 वापस नहीं कर पाया तो बैंक मेरी वर्किंग कैपिटल की लिमिट गिरा दी, ड्रॉइंग पावर नहीं बैठेगी, अगली बार बैंक बोलेगी पैसा वापस करो, आपका वर्किंग कैपिटल खत्म। तो माय वर्किंग कैपिटल assessed drawing power is only 1125 against say 1875 which was before. But उसके अगेंस्ट हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या आता है, नॉर्मल रिएक्शन इज आई कैन नॉट लेट द बैंक रिड्यूस द लिमिट। जो मिल गई वो तो मिल गई, कम हम नहीं करते हम। तो अगर मुझे लिमिट कम नहीं करानी है तो मैं क्या करता हूं, मैं उसमें एक नया लाइन आइटम डालता हूं, इन्वेंटरी, और मैं लिमिट वापस रीइंस्टेट कर देता हूं, 1875 की लिमिट वापस आ। नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस इज द वे यू शुड डू इट, बट आई एम सेइंग कि इंडस्ट्री में होता क्या है। तो अगर मैंने मेरी ड्राइंग पावर बिठा दी दोबारा, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़िया चल रहा है, सब प्रॉफिट में है, बट नेट रिसीट्स अगर आप देखेंगे तो जीरो है, कैश फ्लो में नहीं आ रहा है वो पैसा, ये पैसा मेरा कैश फ्लो में नहीं आ रहा है। बट बैंक इज हैप्पी क्योंकि ड्राइंग पावर बैठी हुई है, पूरी विड्रॉल भी नहीं है, क्योंकि मैंने 1875 में से 1175 वापस कर दिए, उतना मेरे पास कैश था। तो विड्रॉल नहीं है, तो बैंक भी खुश है कि ठीक है ड्राइंग पावर के अंदर अंदर चल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज, ये जो नीचे की 300 रुपए की लिमिट थी, ये ब्लॉक हो, ये पैसा वापस नहीं आने वाला, ये पैसा आप बैंक को नहीं दे पाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉर वॉट एवर XYZ रीजन ये 300 रुपया यहां से निकल चुका है। नाउ इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, आई डोंट, दैट इज नॉट द डिबेट, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशंस ये सही गलत में नहीं आता, ये हो जाता है, क्योंकि हम कुछ तरीके से काम करते हुए आए हैं और चल रही है चीजें। तो 300 रुपया ब्लॉक हो गया। अब जो 300 रुपया ब्लॉक हो गया वो लिमिट मुझे अवेलेबल नहीं है मेरा धंधा करने की। फॉर माई नेक्स्ट साइकिल आई डोंट हैव 1875, आई हैव ओनली 1175 अवेलेबल, सॉरी 1575 अवेलेबल टू वर्क। अब क्या होगा, इस बार रेवेन्यू गिरा था, अगले टाइम थोड़ा नॉन बिजनेस एक्सपेंस ज्यादा हो गया, उसके अगले टाइम मेरे रिसीवेबल्स में से कुछ बैड डेट्स हो गए, उसके अगले टाइम मैंने कैपिटल सीसी के अमाउंट में से कैपिटल एक्सपेंशन कर दिया, कोई प्लांट खरीद लिया, कोई लैंड बिल्डिंग आ गई, कुछ रिनोवेशन हो गया, उसी में से मेरी मार्जिन्स भी गिर गए। ये सारे इवेंट्स विल एड अप टू दैट स्टक वर्किंग कैपिटल। तो जो मेरी लिमिट पहले 300 रुपए से अटकी थी, वो बढ़ते बढ़ते पूरी अटक गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे सीसी का पैसा आइदर प्लांट मशीनरी को फंड कर गया, या कहीं ना कहीं वो एफडी को फंड कर गया, या कहीं ना कहीं वो विड्रॉ हो गया। एंड दिस इज नॉट समथिंग आई वुड से इज अ कॉन्शियस डिसीजन ऑन पार्ट ऑफ द प्रोमोटर, ऐसा कोई सोच के नहीं करता, 90% लोग ये सोच के नहीं करते।
पर ये धंधे में हो जाता है अनलेस यू कीप अ वॉच ऑन व्हाट इज हैपनिंग। क्लासिक इंडिकेटर्स, रेवेन्यू गिरना, मार्जिन कम होना, कैपिटल एक्सपेंशन, इफ देयर इज एनी, अगर समझ लीजिए घर की ईएमआई जा रही है तो भी वो धंधे में नहीं है पैसा। बट फॉर अ प्रमोटर दैट सीसी लिमिट और दैट करंट अकाउंट इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। मेरा जो भी है उसी में है। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसमें से कुछ पैसा अलग करके रखता हूँ। सो ईएमआई लगी तो उसी में से जाएगी। अगर कभी मुझे कहीं कैपिटल एक्सपेंशन धंधे के लिए भी करना है तो भी उसी में से जाएगा। अकाउंट तो एक ही है और पैसा उसी में आता है। तो you never know when you kind of cross the line or when you go to the other side. बट धीरे धीरे वर्किंग कैपिटल लिमिट ब्लॉक होना चालू हो चुका है। तो हाउ डू यू नो वर्किंग कैपिटल इज ब्लॉक? अगर आपकी 10 करोड़ की लिमिट है और 6 करोड़ के नीचे कभी जाती नहीं, 4 करोड़ के नीचे कभी जाती नहीं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं 4 करोड़ ब्लॉक हो चुका। Now how do you remove that block? If you want to remove that block, there is only one way: put equity or जनरेट मोर प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट इज इनडायरेक्ट इक्विटी होगी। तो आइदर घर से पैसा लेके आके इक्विटी में इंफ्यूज करना पड़ेगा या फिर अगले प्रोजेक्ट्स ऐसे जनरेट करने पड़ेंगे जिनसे प्रॉफिट इतना हो जो पुराने गड्ढे भी धो जाए। एंड in whatever experience I have had, this working capital limit and blockage of working capital limit is the biggest concern for MSMEs. ऐसा नहीं है कि बैंक वर्किंग कैपिटल लिमिट देती नहीं है, ये हमेशा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि वो ब्लॉक हो जाती है। तो बहुत बार धीरे धीरे हमारी लिमिट बढ़ते जाती है। कभी 30 करोड़ के टर्नओवर पे अगर मुझे 4 करोड़ की लिमिट मिलती है तो सफिशिएंट होनी चाहिए। 5 करोड़ की लिमिट है, सफिशिएंट होनी चाहिए। पर मैं और कोलैटरल देता हूँ, मैं और मैनेजर से बात करके वो लिमिट खींच खींच के 10 करोड़ कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि एट सम पॉइंट दैट 5 करोड़ गॉट स्टक। नाउ आई नीड मोर मनी, आई नीड मोर लिमिट, सो आई इंक्रीज दैट लिमिट, गॉट इट टू 10। अब वो 10 और 5 के बीच में ही खेल रहे हैं, पर नीचे का 5 कभी भर ही नहीं रहे और उस पर इंटरेस्ट लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। एट सम पॉइंट ऑफ दैट वो 10 भी खत्म हो जाएगा और उस पर सिर्फ इंटरेस्ट भरेगा एंड स्लोली दैट वर्किंग कैपिटल बिकम्स अ टर्म लोन। एंड वंस दैट बिकम्स अ टर्म लोन, there is no other way but to either liquidate the assets to repay or get more money from in the form of equity. मेजॉरिटी एमएसएमई में जहां पे एक्सटर्नल फाइनेंस भी हो रहा है या इक्विटी में पैसा लोग डाल रहे हैं, this is one of the reasons why that situation arises, that I need to infuse more money, sell stake, get somebody else on board, किसी और से पैसा लेके infuse कर। I'm not saying this is the only reason, but ये बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि वर्किंग कैपिटल फंस जाता है। तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होने के इंडिकेटर्स क्या है? अगर आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, अगर मार्जिन्स घट रहे हैं, अगर नॉर्मल से ज्यादा विड्रॉल है फॉर व्हाटएवर रीजंस, अगर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए सीसी का यूज हो चुका है या शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज हुआ है, या फिर रिसीवेबल्स में पैसा फंस गया है और पैसा निकल नहीं रहा है, ये सारे कारण आर काइंड ऑफ द क्लासिक साइंस जिसके कारण वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो सकती है if conscious decisions are not made. सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अगर आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट कम करनी पड़ रही है तो कोई गुनाह नहीं है, इट इज ओके। फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस समटाइम्स इट इज ओके टू रिड्यूस योर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि धंधा वो लेवल पे नहीं है, वो स्केल पे नहीं है, रेवेन्यू थोड़ा कम हो गया इस साल तो कोई बात नहीं अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट कम हो गई। Periodic review of financial to assess your working capital limit instead of just looking at what the bank is giving. आपको सही में कितने की जरूरत है? क्या आपका पैसा वर्किंग कैपिटल लिमिट में कुछ पैसा है जिसके नीचे बैलेंस जा ही नहीं रहा है? अगर 10 करोड़ की लिमिट है, 3 करोड़ से नीचे बैलेंस कभी जाता ही नहीं है सीसी अकाउंट में, तो कहीं ना कहीं बैलेंस स्टक है, तो दैट नीड्स टू बी असेस्ड। नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस को अवॉइड करना इज अ कॉन्शियस एफर्ट दैट वी नीड टू पुट। Non-business expenses, I would say, are those expenses that you can incur from your profits, not from your CC. If there are sufficient profits, you can have those expenses. And matching of source and application, ये basic rule है। अगर source application match होते हुए चल रहा है तो most of these things get solved anyway.
शॉर्ट टर्म टू शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म टू लॉन्ग टर्म। यहां तक कुछ किसी को कमेंट या डिस्कशन? तो दैट वाज बेसिक बैलेंस शीट एंड मैचिंग योर सोर्स टू एप्लीकेशन। इसके अलावा दूसरा जो स्टेटमेंट है विच इज योर प्रॉफिट एंड लॉस, ये अगेन दिस इज अ सैंपल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दैट आई हैव क्रिएटेड। Although this is not the profit and loss which you see as part of your financial statement. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कंपनीज एक्ट बोलता है वो ये फॉर्मेट नहीं है, वो अलग फॉर्मेट है। वो शेड्यूल 3 और अभी तो नॉन कॉर्पोरेट के लिए भी आया है, बट दिस इज अ फॉर्मेट विच गिव्स यू बेटर आइडिया अबाउट योर वर्किंग। तो अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल 3 से भी बनता है या जैसे भी बनता होगा, इफ यू कैन रीड्रॉ दैट प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस फॉर्मेट, it can give you more actionable insight as to where we are going wrong if at all. तो अगर आप बेसिक फॉर्मेट देखेंगे तो रेवेन्यू है, उसके नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज योर डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल, लेबर सब मिला के, वो हटा के ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से जो इनडायरेक्ट ओवरहेड्स है, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, वो हटा के आपको व्हाट इज कॉल्ड एज एन एबिटा। तो एबिटा एज अ टर्म हैज बीन popularized by Shark Tank and startups of the world। तो उससे पहले एबिटा पे किसी ने ज्यादा फोकस किया नहीं, और अभी एबिटा एकदम पॉपुलर हो चुका है। तो एबिटा इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन। उसके बाद ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेस एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर आप ये प्रॉफिट एंड लॉस पूरा देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्राइमरी लेवल पे 3 तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं। एवरी प्रॉफिट एंड लॉस विल गिव यू 3 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स which are relevant for us। तो ग्रॉस प्रॉफिट, एबिटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। If we are trying to analyze a profit and loss statement, I need to see where I stand on all these 3 profits। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ सिचुएशन, जो आइडियल सिचुएशन है, सबसे बढ़िया है, मैं तीनों लेवल पे पॉजिटिव चल रहा हूं। अगर मैं तीनों लेवल पे पॉजिटिव चल रहा हूं, दैट मींस मेरे पास एंड में प्रॉफिट बचता है, आफ्टर टैक्स भी प्रॉफिट बचता है, आई एम गुड, नो प्रॉब्लम। नाउ कम्स द सिचुएशन वेयर आई एम पॉजिटिव ऑन द फर्स्ट 2 places, बट ऑन द थर्ड प्लेस आई एम नेगेटिव। तो मेरा ग्रॉस मार्जिन पॉजिटिव है, एबिटा पॉजिटिव है, पर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव। अब इससे मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि मतलब नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी लॉस ही दिखेगा, ऐसा अलग नहीं आएगा। पर इसमें मुझे ये ज्यादा समझ में आता है कि इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या पॉसिबल स्टेप्स में ले सकते। अगर मेरा एबिटा पॉजिटिव है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव है एज पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस, इट मींस दैट योर प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉस इज आइदर डेप्रिसिएशन या फिर इंटरेस्ट। तो अगर आपका लॉस डेप्रिसिएशन से आ रहा है तो एक बार का फिर भी ठीक है कि कैश प्रॉफिट में है तो कोई ओके, वी कैन स्टिल सर्व। बट इज योर लॉस प्राइमरी ड्यू टू इंटरेस्ट कॉस्ट? अगर मुझे ये समझ में आता है कि मेरा लॉस इज प्राइमरीली ड्यू टू इंटरेस्ट कॉस्ट, देन एटलीस्ट आई हैव एक्शनेबल इनसाइट दैट आई कैन गो टू द बैंक, negotiate for better rate, और आई कैन restructure my capital to see कि मुझे इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लोन कम करना है, इक्विटी बढ़ानी है, नेचर ऑफ कैपिटल चेंज करना। ये इनसाइट मुझे इस नंबर से मिलेगा, इस डिफरेंस से मिलेगा। अगर मेरा एबिटा पॉजिटिव है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव है, then I get this insight that I need to either go and renegotiate interest rates or I need to change my capital structure। तभी ये मेरा जो कॉस्ट है ये कम हो सकती है और मैं ये प्रॉफिट से नीचे भी प्रॉफिट ला सकता। तो अगर आप शार्क टैंक या ये जो पॉपुलर शोज है उसमें भी देखेंगे तो दे आर फिक्सेटेड अपॉन एबिटा। एबिटा पॉजिटिव चाहिए। क्यों एबिटा पॉजिटिव चाहिए? क्योंकि अगर आप उसके नीचे नेगेटिव हो भी तो भी मैं पैसे लगा के आपका इंटरेस्ट कॉस्ट तो वैसे भी कम करूं। तो अगर आप एबिटा पॉजिटिव हो तो नीचे का पॉजिटिव लाने की जिम्मेदारी मेरी एज एन इन्वेस्टर, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिप्लेस मोस्ट ऑफ योर डेट बाय पुटिंग मनी, सो यू डोंट इनकर इंटरेस्ट कॉस्ट। और आई एम एन इन्वेस्टर, आई एम अ बिगर पर्सन, आई कैन निगोशिएट विद द बैंक बेटर, आई विल रिड्यूस योर इंटरेस्ट कॉस्ट। जो भी है मैं आपका इंटरेस्ट हटा दूं।
तो आप नीचे भी प्रॉफिट में आ जाओ। तो एबिटा पॉजिटिव होना जरूरी है। अब व्हाट हैपेंस इफ यू बिकम एबिटा नेगेटिव बट यू आर प्रॉफिटेबल एट अ ग्रॉस लेवल? अगर आप ग्रॉस लेवल पे पॉजिटिव है और एबिटा नेगेटिव है, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके ओवरहेड्स जरूरत से ज्यादा है। तो आपकी वॉट एवर सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, अदर ओवरहेड्स, दे आर मोर देन व्हाट योर ग्रॉस प्रॉफिट कैन सस्टेन। इसको ठीक करने के दो ही तरीके, खर्चा कम करो या ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाओ। वॉट एवर इज डूएबल। अगर आपको लगता है कि नहीं है शॉर्ट टर्म है, मेरा अगले साल धंधा बढ़ जाएगा, ये सब हो जाएगा, आई कैन सस्टेन, तो वी कैन सस्टेन। अगर मुझे लगता है कि नहीं, दिस रेवेन्यू का जो लेवल है दैट इज हियर टू स्टे फॉर नेक्स्ट 2-3 years, then if I want to still be profitable then I need to reduce my cost. अभी आपने सुना होगा कि गूगल है या Amazon एंड फेसबुक, ऑल दीज कंपनीज आर डूइंग मास लेऑफ्स। तो 6,000 लोगों को निकाल दिया, 5,000 लोगों को निकाल दिया। अब ये लॉस ले ऑफ करने का प्राइमरी रीजन यही है कि ये लोग एबिटा नेगेटिव हो रहे हैं। अगर मैं एबिटा नेगेटिव हो रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं सस्टेनेबल नहीं हूं, मुझमें लोग इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट कैपिटल, इट इज अबाउट कॉस्ट। नाउ आई समवेयर माय कॉस्ट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू माय रेवेन्यू, तो कॉस्ट को कम करो, लोगों को हटाओ, सैलरीज कम करो, रेंट कम करो। तो लोगों ने ऑफिसेस बंद कर दिए, लोगों को मास ले ऑफ्स किए, इंक्रीमेंट्स देना बंद कर दिया। दीज आर सम मेजर रिएक्शंस टू नेगेटिव एबिलिटी। Even for a MSME organization, this gives you enough insight that you go back and look at your operations to see whether there is any scope for optimization. और लास्ट जो पहला वाला सीन है, where you are negative at gross margin. अगर आप ग्रॉस मार्जिन लेवल पे ही नेगेटिव हो तो कल से धंधा बंद करो, क्योंकि फिर धंधा करने में कोई मतलब नहीं। योर एंटायर प्रॉफिटेबिलिटी कम्स फ्रॉम योर ग्रॉस मार्जिन। इफ योर ग्रॉस मार्जिन इज जीरो तो कुछ मतलब ही नहीं बना, फिर सब खत्म हो गया। तो जब तक के ग्रॉस मार्जिन पॉजिटिव है तब तक के होप है। जब आपका ग्रॉस मार्जिन गया, उसके बाद दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू रिवाइव, गेट अ ग्रॉस मार्जिन, उसके बाद बाकी का देंगे। Now the last statement out of the three is cash flow. Cash flow statement most of the organizations do not make, क्योंकि वो अगेन लॉ बोलता ही नहीं है बनाने के लिए, तो मैं क्यों बनाऊं। But if you see the cash flow as a statement, it gives you more insight in your actual cash in hand. प्रॉफिट और लॉस तो एक बात है, क्योंकि मैं खर्चा बुक कर चुका हूं, पर जरूरी नहीं है मैंने उसका पैसा भी दिया है, और मैं रेवेन्यू बुक कर चुका हूं, पर जरूरी नहीं है कि पैसा आ चुका है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे ये बताता है कि पैसा आया या नहीं, मैं घर लेके जा सकता हूं या नहीं, ये मुझे कैश फ्लो बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताता। तो अगर आप, अगेन दिस इज अ बेसिक एग्जांपल, ये बेसिक फॉर्मेट है जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, और इसे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। इट इज अ लिटिल ट्रिकी टू अंडरस्टैंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, बट वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट तो फिर समझ में आ जाता है कि एक मूवमेंट क्या हो रही है। यू स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, और सबसे पहले आप वो खर्चे एडजस्ट करते हो जो कैश वाले नहीं है। तो डेप्रिसिएशन जो आपका, जिससे प्रॉफिट कम हुआ है पर कोई कैश में पैसा बाहर नहीं गया है, वो सब एड बैक होता है। सेकेंड आर एडजस्टमेंट्स टू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तो ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पेएबल। अब उसके एडजस्टमेंट्स के डिटेल में मुझे जाना नहीं है, पर इसमें से हमें समझता क्या है, कैश फ्लो में से मुझे ये समझता है कि मैं कैश पॉजिटिव हूं या नहीं। वैसे प्रॉफिटेबिलिटी है, पर कैश बेसिस पे मुझे घर पे पैसा लेने जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट लेवल पे बनता है ऑपरेटिंग कैश, कि धंधे में से कैश बन रहा है। प्रॉफिट है अलग बात है, बट कैश जनरेट हो रहा है क्या, सामने से पैसा वापस आ रहा है क्या, पैसा रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मेरा ऑपरेटिंग कैश नेगेटिव है, देन आई एम इन ट्रबल, then that means my company or my organization is not being able to generate enough cash to run my operations. I cannot be operating cash negative. That is a sign where I need to intervene. Second is, अगर मैं ऑपरेटिंग लेवल पे नेगेटिव हूं, समझ लीजिए सामने सेल हो गया पर पैसा आ ही नहीं रहा है, तो मैं पैसा ला कहां से रहा हूं, मैं
चला कैसे रहा हूं मेरे ऑपरेशन। तो माय सेकेंड सोर्स ऑफ मनी इज इन्वेस्टिंग। क्या एफडी में से पैसा निकला है, क्या मैंने इन्वेस्टमेंट तोड़ के पैसा लाया, क्योंकि डेटर्स तो पे कर नहीं रहे, इन्वेंट्री तो कम हो नहीं रही। एंड माय थर्ड सोर्स इज फाइनेंस। तो आइदर आई टेक अ वर्किंग कैपिटल लोन, आई टेक अ लॉन्ग टर्म लोन, ये यहाँ दिखता है। तो दिस statement gives you an idea of, are you operating positive? If you are not, how are you funding your activities? Is it from a loan? Is it from investment? अगर आप ऑपरेटिंग लेवल पे नेगेटिव हो, देयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, यू नीड टू इंटरवीन। तो अगर ये एग्जांपल में हम देखेंगे तो हम ऑपरेटिंग लेवल पे नेगेटिव चल रहे हैं। ऑल्दो आई हैव इनफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो लोन वोन लेके मैंने काम तो आगे बढ़ाया है, पर क्लोजिंग जीरो है, मैं घर कुछ नहीं लेके जा सकता, ऊपर से मुझे मेरे जेब से ही पैसा डालना पड़ रहा है क्योंकि कैश फंस गया है। नाउ हाउ डू आई मेक दिस बेटर? if we only see again the working capital part of it, सिर्फ इस वर्किंग कैपिटल का करंट रेशियो 8.75 है। नाउ अगेन दिस इज अ इंक्रीमेंटल चेंज इन माय वर्किंग कैपिटल। तो मेरी इन्वेंट्री 950 से बढ़ी है, मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स 800 से बढ़ा है और पेएबल सिर्फ 200 से बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा सामने पैसा इंक्रीमेंटल फंसा है रिसीवेबल में, इन्वेंट्री में, उसके अगेंस्ट मुझे मार्केट में से उतना क्रेडिट नहीं मिला, जिसके कारण ऑपरेटिंग लॉस, कैश लॉस। हाउ डू यू करेक्ट दिस? थोड़ा सा मार्केट में से और मुझे पैसा चाहिए तो क्रेडिटर्स ज्यादा रखो और थोड़े रिसीवेबल्स कम कर दो। अगेन दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ये आप वैसे भी समझ के कर सकते हो, कोई बड़ी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बट दिस स्टेटमेंट गिव्स यू दैट स्टिमुलस कि यार इसका कुछ करो, हमें दिस इज हाई टाइम दैट वी नीड टू टेक एक्शन। यू अदरवाइज ऑल्सो नो कि पैसा फंसा है तो लेके आना है, यहाँ से मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो टर्म्स निगोशिएट करने, ये हमको वैसे भी पता है, नेचुरल है। But all these statements give you that required push कि things are going downhill, हमें कुछ ना कुछ अभी करना है, इसके ऊपर एक्शन लीजिए, ये स्टेटमेंट हमें बता। And that is why it is more important that these statements are generated on a more real time basis. तो तीन स्टेटमेंट्स पर बेसिक प्री रिक्विजिट है कि it is the financial statements are seen as a tool, they are not seen as compliance. It is important that accuracy is maintained, तो garbage in garbage out, अगर डेटा ही सही इनपुट नहीं होता है, अगर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है तो पीएनएल भी कचरा ही बनेगा, तो उसमें से कोई डिसीजन मेकिंग आप कर नहीं पाओ। बुक कीपिंग टाइमली हो, एक्यूरेट हो और उसका पीरियोडिक रिव्यू किया जा सके। तो कभी कहीं ना कहीं द प्रमोटर्स फाउंडर्स में whoever is your financial advisor, I would say sit with that advisor for at least once in a quarter and discuss what is happening on your balance sheet. Try to see कि is there any adjustments we need to do, क्या कैपिटल स्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, क्या मेरा पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है। ये इनपुट आपको क्वार्टरली बेसिस पे अगर आपने लिया तो इट कैन गिव यू अ मोर टाइमली इनसाइट एंड यू कैन टेक अ टाइमली एक्शन, मोर इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ फॉर एमएसएमईज वैसे तो स्कीम बहुत है, एंड फिर परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, क्रेडिट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, बट लोन के लिए जो बेसिक दो चार स्कीम्स है गवर्नमेंट की, which I think most of you are aware. Under CGTMSE, the government allows you to take collateral free loan, और ये again this is a term loan. इसमें जो इंश्योरेंस गवर्नमेंट देता है उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज आपको बेयर करना पड़ेगा, बट अप टू 10 करोड़ का लोन कोलैटरल फ्री टर्म लोन बैंक्स देती है अंडर CGTMSE स्कीम। देन देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जहां पे सब्सिडी है 15 से 35% की, बट अगेन दिस इज फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, जो नए लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, तो 25 लाख रुपए तक फॉर मैन्युफैक्चरिंग, 10 लाख रुपए तक फॉर सर्विसेज, इट इज अ सब्सिडी लिंक टू लोन्स। फिर मुद्रा स्कीम है जिसमें अगेन अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन मिलता है विदाउट एनी कोलैटरल। स्टैंड अप इंडिया के अंदर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और SC/ST कैटेगरी में अगर है तो टर्म लोन्स के ऊपर देयर इज अबाउट अप टू 1 करोड़ का loans are being given without collateral.
And then there are credit-linked capital subsidy schemes, which are multiple schemes, which allow you to have certain level of subvention on your loans. पर ये अब depending on what industry you are, इसमें change कम ज्यादा हो सकता है. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, नया यूनिट डालना चाहते हैं, तो सिडबी की तरफ से स्कीम्स है where they are giving up to 50 crores of loans. It is not a collateral free loan, but terms are better. They give much more leverage on the collateral than other banks will do. तो सिडबी का ये स्कीम ही निकला हुआ है फॉर मैन्युफैक्चरिंग. अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है उनके लिए भी एक एमई कार्ड का प्रोविजन आया है गवर्नमेंट में, जिसमें you get pre-approved credit card, which is up to 5 lakhs, again collateral free. Then there is a trade receivable discounting system available from the government. There are private players also. पर इसमें आप अगर आपके bills raise हुए हैं, उनका discounting कर सकते हैं. So it is a trade platform which allows your bills to be exposed to multiple banks and banks start bidding for those discounting. तो उसमें अगर bills आपका upload हो गया और banks के पास वो लिस्ट आ जाती है कि इतने अभी अपलोड हुए, एंड देन बैंक्स बिड कि किसको कितने में डिस्काउंट करना है. एंड देन इफ योर सामने वाली पार्टी अगर अच्छी है, उसका क्रेडिट अच्छा है, तो काफी सारी बैंक्स आपके सामने से क्रेडिट उसको डिस्काउंट करके आपको अपफ्रंट पैसा दे देगी. एंड देन अगेन सपोर्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. अभी 2 करोड़ तक का टर्म लोन इस बजट में आया हुआ है. Even for startups, I think InFed is nodal agency for most of the funds which are being deployed for startups also. तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के अंदर 50 लाख रुपए तक का लोन मिलता है फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स जो 2 साल के अंदर अंदर है और डीपीआईटी में रजिस्टर्ड है. उनको अप टू 50 lakhs का लोन मिलता है, विच इज आई थिंक एट 3-4% रेट. देयर इज अ फंड ऑफ फंड, अगेन दिस इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें से ये सारा डिप्लॉयमेंट हो रहा है. तो 10,000 करोड़ का पैसा अलग किया हुआ है, जिसमें से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के अंदर पैसा जा रहा है, निधि एयर के साथ जा रहा है, अटल इंक्यूबेशन मिशन में जा रहा है. देयर इज ऑल्सो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स एज देयर इज फॉर एमएसएमई. तो सीजीटी एमएससी जैसा सीजीटी फॉर स्टार्टअप्स भी है, जहां पे 5 करोड़ तक का कोलैटरल फ्री लोन बैंक्स देती है. देन अटल इनोवेशन मिशन में भी funding हो रहा है for equity as well as debt, but again that number varies depending on who is the implementing agency. There are initiatives for biotechnology, there are initiatives for IT based, there are initiatives for patent protection. तो अगर आपने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया है जिसमें आपको पेटेंट मिला है, तो up to 15 lakhs government is refunding or reimbursing the cost for filing that patent. और स्टार्टअप इंडिया के अंदर इनकम टैक्स में 3 साल का बेनिफिट है, जहां पे यू डोंट द एलिजिबल स्टार्टअप मे नॉट पे इनकम टैक्स फॉर 3 consecutive years आउट ऑफ द एनी फर्स्ट 10 years ऑफ एग्जिस्टेंस. ऑल्दो ये अप्लाई करना के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस है उनके. तो मतलब पीएचडी होल्डर होने चाहिए, आपने पैटेंट्स करने चाहिए, तो बहुत सारे सवाल है. तो इट बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी एट टाइम्स, बट देयर इज अ प्रोविजन वेयर एग्जेम्पशंस आर बीइंग गिवन. तो again, depending on what industry you are in and what you are trying to achieve, there are schemes which are available. But basically, sources of nature of finance, दो ही टाइप: टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में सीसी, ओडी, secured, unsecured, packing credit, export credit, bill discounting, all that comes under working capital. Okay. So basic summarizing what we discussed over the last maybe 45 minutes is financial statements, cash flows included, are an effective tool for financial management. As long as the kind of information which is generated is accurate, it can be managed effectively if we are looking at those statements periodically. Summarizing, हर capital का एक purpose है. If it is a long term, the application has to be long term. If it is a short term, application has to be short term. फाइनेंशियल रेशियोज जो आपको बैंक वैसे भी मांगती है, अगर आप आपके लेवल पे देखें तो दे आल्सो गिव यू इनफ इनसाइट इनटू वर्किंग ऑफ योर कंपनी. और अगेन कैश फ्लो इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी मॉनिटर्ड मोर क्लोजली, क्योंकि वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो से ही समझ में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में से नहीं समझ. थैंक यू.
Any question answers on the subject? Sorry, question. Yeah, please. I have another two questions. QR code. For a company like we have a 500 and these are 4 year cycles. But we couldn't avail any facilities in startup in the initial years. Is there any facility for us right now? And either of the director is a woman, is that working or that works? Well, now, most of these जैसे SISF का भी लोन जो मिलता है, most of it is given in the first 2 years. तो अगर आपका incorporation के बाद 2 साल के ऊपर हो गए तो you are not eligible, because then you are not considered a startup, you are considered a more established business. So how do we avail like then what are the major schemes for us? Because we basically then you are not just then you don't come under the startup criteria. आपके लिए फिर MSME ही है. You know CGTMS scheme we have applied. Banks and something procedure, they don't get it. They are reluctant. Basically, they are not trusting the government whether they will pay back or not. So, हाँ, but वो startup में नहीं है. हाँ, ठीक है. If it does not come in startup, then how do we like approve it? What is the procedure for that? For startup? No, for a normal firm to get us under funds in the CGTMS scheme or something. That is something we need to discuss with the banks. वो तो हर बैंक देती है. So if one bank does not give, we speak to some other bank. But banks will वो CGTMS में करेगी या नहीं करेगी ये बैंक का पेनल्टी. So can I put in there? Sure. There is a scheme of government to 59 minute scheme. You can have their GST turnover over there and you can तो वो go ahead with that scheme. तो एक PS 59 करके scheme है जिसमें they are saying that we will give you in principle approval for your loan within 59 minutes based on your IT documents, GST documents and balance sheet, financial statement. तो उसमें अगर आप अपलोड कर दो तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल वहां से आता है एंड देन यू कैन अप्रोच द फॉर CGTMS. So it's a better chance to get a loan or PS 59 because बैंक में अगर आप जाते हो तो आपको बोलता है यहाँ अनसिक्योर्ड लोन के लिए बैंक वैसे ही थोड़ा रिलक्टेंट रहते हैं. मैंने PM पोर्टल पर कंप्लेंट कर दी मैनेजर गुस्सा हो. कंप्लेंट तो they were like we are not able to understand the balance sheet. I said आप मुझसे पूछो मेरे CA से पूछो या आप अपने किसी अकाउंट PM 59 जो स्कीम है उससे ट्राई करिए उससे. It's a better portal. Any further questions? Yes. Just a minute. Sir, लेकिन continue. रामटेक से आ रहा हूँ. जी. एक्चुअली मैं 4 महीने से घूम रहा हूँ और मैं 7 से 8 बैंक जा चुका हूँ, लेकिन बैंक वाले कुछ अप्रोच नया प्रोजेक्ट है मेरा तो CGTMS में दे नहीं रहे वो लोग. कोलेटरल लेके आओ. जो प्रिंसिपल है वो जीरो हो गया. प्रिंसिपल जीरो हो गया. अब कोलेटरल बात करोगे तो मोर देन 70%. ये फैक्ट आ रहा है. अभी गवर्नमेंट निकालती स्कीम क्या CGTMS में हम दे सकते हैं. मुझे से लोग कहाँ से देंगे, कितना प्रॉपर्टी कहाँ से देंगे उसको देने के लिए. So basically it's a startup unit or a running unit? ना स्टार्टअप यूनिट. Startup. पर वो आपका DPIIT में रजिस्टर्ड है तो एक्चुअली DPIIT का जो ये है that is how the government recognizes you as a startup if you are registered under that DPIIT. उधर उस साइड नहीं गया. एक्चुअली PMFME से हमने ट्राई की है. प्रधानमंत्री माइक्रो प्रोसेसिंग जो ये है ये निकला है उसके थ्रू हम गए तो जो उसका मेंटर था उन्होंने तो अलग कर दिए. बैंक को भी अलर्ट कर दिए, लेकिन बैंक वाले बंदे को सिक्योरिटी चाहिए टोटल. Look, my experience has been, I think sir can add, but my experience has been that not all banks are very comfortable giving loan without collateral. तो ये स्कीम है which is I agree CGTMS में भी स्कीम है और गवर्नमेंट ने बोला है कि वो उसका गारंटी करते हैं. But many banks are still reluctant basis your financial statements. So again, looking at the financial statements, अगर बैंक को कोई reservations है तो वो अलग से समझना पड़ेगा. But they will do मतलब वो अपना ड्यू डिलिजेंस खुद करेंगे और फिर बैंक टू बैंक फर्क पड़ता है. बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक हो गया है. एक बार आप अपना जो डिटेल्स है वर्किंग मैं राजेश बैक ऑफिस को आप एक बार यहाँ पर आपका डिटेल एक लेटर दे दीजिए. सो व्हाटएवर कैन बी डन थ्रू VI वी कैन वी लुक इनटू इट. Sorry, Pranam, and I have a question on the profits that you have shared with knowledge that you have shared with us. So, what is the marginal cost that you put into our expenses? So, does it affect our profits?
नहीं, fluctuating margins, fluctuating margins that we put, like if we are purchasing the raw materials, sometimes suddenly the price get increased. So does a fluctuating margin that we are putting more, like if we are getting a gross profit of 40% and putting a 10% fluctuating margin, so it will going to give 50%. So is it good to be in that? Like नहीं, fluctuating margin is some money that you put in because of loss of margin. not of loss of margin, that the profit that we are earning 40% and we are putting 50% and fluctuating profit that we are putting 10% more in that. 10% आप equity के तौर पे डाल रहे हैं. How are you putting that money? That whatever the product that I'm selling, okay, so the MRP that I'm putting of that product, so I'm including the fluctuating margin in that. अच्छा, so you are changing your MRP every day. So sir, MRP is something which is primarily guided by the market. If the market allows you to play with your MRP, तो ठीक है. पर अगर MRP फिक्स्ड है, अगर मार्केट बोलता है ये इस चीज ये दिस कमोडिटी आई विल बाय ओनली फॉर 10 रुपीज, वो जो आपका खर्चा है वो आप दें, देन उस केस में आप कैसे आपका मार्जिन उसमें बढ़ा के आप MRP बढ़ाओ. तो अगेन डिपेंडिंग ऑन व्हाट मार्केट यू आर प्लेइंग इन, can that MRP absorb additional cost is something you need to see. Basically, I'm into solar sector. I'm a EPC vendor in that. So the panels prices are increasing just like gold prices right now. हाँ, तो वो तो सभी तो मार्केट ट्रेंड क्या है सर वो समझना पड़ेगा. If overall this price is increasing, then of course you can increase. Thanks, Dr. Nasser, for a very insightful session on financial knowledge and management. So there is a QR code being shown on the screen. So it is just a small request if you people can scan that QR code and provide your feedback for the session. Along with that, we have provided you two things. One is GEM interest sheet. अगर आप लोग आपकी कंपनी का registration GEM portal पे करना चाहते हैं तो one list is being circulated with you people, and also आपको एक ECG का एक फॉर्म दिया गया है. So basic information you need to fill it up. So it's just a small request अगर आप लोग कर दें, so that would be really helpful. And with that, after just a couple of minutes, I'd like to invite Sachin sir to take over the podium, and I will take his session on input tax credit rules under GST. Sachin sir, please. Thank you, Amol. Very good evening to all of you. गर्मी के दिनों में कुछ GST से रिलेटेड और गरम सुनने की इच्छा है, और सबसे गरम टॉपिक GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट, और सबसे अच्छा सेक्शन GST में जो सबसे पहले शुरुआत यही करता हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन गवर्नमेंट ने बहुत चुन के दिया है. 16 नंबर का सेक्शन है, एंड स्वीट 16 एंड डेंजरस 16, और स्वीट 16 का डेंजरस 17 है, तो 17 दो सेक्शन आपने को ध्यान रखना. Now I will start my session. Thank you, Naresh sir, Vice President VI, for giving me the opportunity, and thank you Pranav for taking up the session and एक tempo आपने build कर दिया है. So input tax credit is the most important topic of GST. But उसके पहले एक चीज पूछता हूँ, what is GST for you people? आपको क्या लगता है, what is GST? आपके जेब से टैक्स, आपके जेब में से टैक्स, क्या चीज है? अगर आप बताएं, वो थॉट प्रोसेस जेब से, जेब में से, तो दोनों आंसर गलत है. वैल्यू एडिशन क्या है उसका? क्योंकि जीएसटी है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. किस डेस्टिनेशन पे प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूम हुआ है, फाइनल कंज्यूमर को वो टैक्स देगा. यहाँ पर सभी इंडस्ट्री से, ट्रेड से, आपके जेब में से कोई भी टैक्स नहीं ले रहा है. आपके जेब में से एक भी रुपए का टैक्स नहीं जा रहा है. ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी का पैसा जो है होता है ऐसे कि पैसा आ जाता है आपके पास 30 दिन के अंदर, जैसा भी टाइम रहा, मैक्सिमम
30 डेज अगर मैं स्टार्ट करूँ कि 10 तारीख को पैसा आ गया और 20 तारीख को भरना है, तो भी थोड़ा बहुत मार्जिन अपने को मिलता है, वर्किंग कैपिटल अपन खेल लेते हैं और वो पैसा को अपना समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो थॉट प्रोसेस चेंज कर दीजिए कि जीएसटी का पैसा मेरा पैसा है। आपको कुछ दिन आपकी वर्किंग कैपिटल फंडिंग के लिए किसी चीज के लिए मिल रहा है तो गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया, तो भाई जीएसटी का पैसा आपका नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थॉट प्रोसेस अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो जीएसटी इज वेरी सिंपल फॉर यू। इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। आप ये समझ लीजिए आपसे कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर रहा है, आप वसूल करके गवर्नमेंट को दे रहे हो। अब इस सिचुएशन से आगे अपन बात करते हैं कि आपने गवर्नमेंट को जो पैसा दिया है और जो जीएसटी लग रहा है, दिस इज ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन व्हाट यू आर डूइंग। आपने एक प्रोडक्ट परचेस किया है, रॉ मटेरियल लिया है, उसको मैन्युफैक्चर करके आप सेल कर रहे हो, तो जो वैल्यू एडिशन आप कर रहे हो सिर्फ उसी बेसिस पे आपका टैक्स लग रहा है, क्योंकि परचेस का टैक्स आपने दे चुके हैं, सेल का टैक्स आपने रिकवर करना है, डिफरेंट जो वैल्यू एडिशन किया है वही आपको साथ में गवर्नमेंट को देना है। एक बहुत इजी एग्जांपल होता है कि आजकल आपके यूपीआई वॉलेट्स काफी चल रहे हैं। यूपीआई वॉलेट में जितना पैसा रहेगा उतना आप खर्चा कर सकते हो। दैट यूपीआई वॉलेट में आपका जो पैसा है दैट इज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो आपने परचेस के समय परचेस ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपेक्स, एनी अदर सर्विसेज, वो जो भी आपने किया है उसके ऊपर जो जीएसटी भरा है दैट इज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो क्लेम है, आपको जो राइट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं जीएसटी के थ्रू, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। The thing is कि GST is first of all that input tax credit is not your right. एक सबसे अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट है। सबको लगता है इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा अधिकार है। This is not your right. This is a facility what government has provided you to avoid the cascading effect of taxes. कि आपने खरीदे पे भी टैक्स दिया, बिक्री के पे टैक्स दिया, तो जो फाइनल कंज्यूमर उसके लिए डबल 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 ट्रिपल और फोर्थ लेयर टैक्सेशन आ रहा है। सो वो अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम दिया। So is it clear? So we can start about the section. Thank you. So while we are discussing input tax credit in capacity building program under RAM, this is the most important thing. And आपने 45 minutes अभी सुना है प्रणव को with regard to funding of your business and arrangement of working capital and other different types of funds for your business. So what we say is money saved is money earned. Input tax credit to कुछ basic चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने परचेस के समय टैक्स भरा है आपको उसका क्रेडिट मिलेगा सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशंस, और उस कंडीशंस को आपके कंप्लाई करने के बाद ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। और आप कंप्लायंस नहीं करते हो तो आपने परचेस के समय भी टैक्स भरा है, आप सेल के समय भी टैक्स भरोगे, आप डबल टैक्सेशन में जा रहे हो एंड यू आर लूजिंग योर कैपिटल, यू आर लूजिंग योर प्रॉफिट्स। तो यहाँ तो बात करें प्रॉफिट बचाने की, प्रॉफिट कमाने की। आईएम का भी इंटेंशन वही है, इनफैक्ट का भी इंटेंशन वही है, वर्ल्ड बैंक का इंटेंशन है, सब यहाँ बैठे उनका एक इंटेंशन है, प्रॉफिट। So money saved is money earned. We are saving the money through proper utilization of input tax credit and doing a proper compliances. So first thing, to claim your input tax credit, you have to be registered as regular taxpayer under GST. I don't think कोई composition वाला बंदा यहाँ पर है। Anyone under composition scheme? नहीं, ठीक है। So जो regular taxpayer है उनके लिए ही GST के input tax credit के rules apply होते हैं। There are few things to remember. What documents you should have with you to claim input tax credit. First of all, Section 16 governs it. तो आपको बोलते हैं you should be a registered person and you should possess some documents for claiming input tax credit. First and foremost document is your invoice. You should have original copy of your invoice with you. WhatsApp पे नहीं चलेगा। रिमेंबर दैट, कई भी व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, पेमेंट हो जाता है, तो बहुत इजी फैसिलिटीज हो गई है आजकल। व्हाट्सएप कोई भी सोशल मीडिया पे आगे चल जाता है, बट यू शुड हैव अ फिजिकल कॉपी ऑफ योर इनवॉइस। इनवॉइस शुड बी प्रॉपर।
आपके कंपनी का नाम, आपका बिलिंग एड्रेस, आपका जीएसटी नंबर, इट शुड बी प्रॉपर्ली मेंशन. एंड वन ऑफ द लेटेस्ट थिंग व्हाट वी हैव नोटिस नाउअडेज इज ई-इनवॉइसिंग नहीं हो रहा है. Even 5 crores and above, the person who have crossed their turnover of 5 crore and above in any financial year from 2017 to 2015, 25, sorry, they are supposed to generate e-invoice and IRN number, and you should possess e-invoice with you. कंपनीज में फैसिलिटी ऐसी होती है कि मंथ एंड पे कई जगह अकाउंटिंग होती है. उस मंथ एंड के बाद 30 तारीख का कितने इनवॉइस जनरेट करते हैं वो एक साथ जनरेट करते हैं, एंड यू मेक अ पेमेंट ऑन द नॉर्मल इनवॉइसेस. सो प्लीज आप चेक करिए कि आपके ई इनवॉइस आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. इफ यू डोंट पोजेस ए इनवॉइस, यू आर टेकिंग अ रिस्क कि आपका इनपुट टोटली डिसर हो जाएगा, बिकॉज द अदर पर्सन, योर सप्लायर, इज नॉट एलिजिबल टू ट्रांसफर इनपुट क्रेडिट टू यू. बहुत बेसिक चीज है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखनी है. रिसेंटली काफी इंसिडेंसेस ऐसे हुए जिसके बेसिस पे इनवॉइस न होने से पूरे ट्रांजैक्शन हुआ है, बिल आया, मटेरियल आया, सब कुछ आया, बट इनवॉइस नहीं था, इनपुट टैक्स रेट डिसर हो. You should receive the material or services, goods or services. Receipt of services, आप कोई चैनल है आपका जो ऑडिट ट्रेल होगा, मेक अ सिस्टम कि आप रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज प्रूफ कर पाओ. डिपार्टमेंट आके बोला आपको सर्विस मिली कि नहीं मिली, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू हैव रिसीव्ड. So there should be a proper documentation on that part. Receipt of goods are supported, must be supported by e-way bills. ई-वे बिल आजकल मैक्सिमम 50,000 एंड वो 1 लाख के वो आपको गुड्स के लिए लगता ही है. तो मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग ई-वे बिल्स. अगर आप 1 लाख के नीचे या 50,000 के नीचे तो भी आप ई-वे बिल बना सकते हो. इट्स अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट. तो कई बार आपको बेनिफिट होता है, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगते हैं इसमें, एंड वी आर टेकिंग एफर्ट्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और अर्निंग सेविंग अवर मनी. सो इनपुट टैक्स रेट में आपका फर्स्ट आपका इनवॉइस होना चाहिए, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, आपके डिटेल्स इनवॉइसेस पे प्रॉपर्ली मेंशन होने चाहिए. अगर इफ यू हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से आपने डायरेक्ट शिफ्ट टू बिल टू शिफ्ट टू कंसेप्ट में आपने बिल दिल्ली से लिया है, मटेरियल चंद्रपुर दे दिया, लेकिन आपका एड्रेस नागपुर का है, तो आप देखिए कि आपका ई-वे बिल प्रॉपर बना है कि नहीं है, आपके सप्लायर ने डिलीवरी एड्रेस बराबर डाला है कि नहीं डाला है. डिलीवरी एड्रेस नागपुर का है, ई-वे बिल चंद्रपुर का है, तो जब डिपार्टमेंट में आते तो आपको मुश्किल होगी कि ये क्या चल रहा है, एंड डिपार्टमेंट आर वेरी रिलक्टेंट टू ट्रांसफर इनपुट क्रेडिट टू यू. तो ये छोटी छोटी चीजें आपके इनवॉइसेस से रिलेटेड आपको ध्यान रखते हैं. सामने वाले ने जीएसटीआर 1 भरा है कि नहीं भरा है, आपके जीएसटीआर 2B में इनपुट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. अ वेरी कॉमन फिनोमेना इज दैट कि आप एक 11 तारीख को या 13 तारीख को अपनी ड्यू डेट है जीएसटीआर 1 और आईएफएफ डालने की, बट 14 या 15 को तारीख को डालते हैं, सर 2A में दिख रहा है, आप ले लो. बहुत कैजुअली कई जगह इंडस्ट्रीज में होता है, सर 2A में दिख रहा है, आप ले लो ना, अगले महीने तो मिलना है. बट अगर आप 2A के बेसिस पे इनपुट लेते हो तो यू हैव गिविंग अ चांस टू डिपार्टमेंट कि आपको एक नोटिस सर्व करे कि आपने क्यों एक्सेस क्रेडिट क्लेम किया, उसको एक्सप्लेन किया है. 2B से ज्यादा का क्रेडिट मत लीजिए. 2B में जो दिख रहा है उसको वेरीफाई कीजिए. 2B का रिकंसिलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल कम टू दैट थिंग लेटर ऑन. नेक्स्ट, सामने वाले ने टैक्स पे किया है कि नहीं किया. गवर्नमेंट के पास आपका जो जीएसटी है, आपने जो उनको पेमेंट किया है जीएसटी का इनवॉइस पे, उसका पेमेंट गवर्नमेंट ट्रेजरी में होना चाहिए. एंड दैट इनपुट टैक्स रेट इज नथिंग न्यू फॉर अस, वैट के सिस्टम से हम फॉलो कर ही रहे हैं, एंड इट वाज वे बेटर देन व्हाट जीएसटी इज डूइंग. महाराष्ट्र वैट हैज वेरी गुड सिस्टम ऑफ इनपुट प्रोवाइडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. J1 J2 सिस्टम जो उसमें चलता था, इनवॉइसिंग सब दे रहे थे, तो वी थिंक वी डू हैव अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ रिकंसिलिएशन. बट कभी कभी कैसा सिस्टम लूज हो जाता है, हम भी लूज हो जाते हैं, वी डोंट रिकंसाइल अवर 2B. और सामने वाले 3B में टैक्स पे किया है कि नहीं किया है, ये चेक करने के लिए आप जीएसटी पोर्टल पे इस फैसिलिटी अवेलेबल है. प्लीज चेक योर सप्लायर्स डिटेल, उन्होंने रिटर्न फाइल किए कि नहीं किए. यू कैन चेक कि R1 फाइल हुआ है, 3B नहीं फाइल हुआ है. 3B फाइल नहीं होता है तो आपका इनपुट टैक्स रेट डिसअलाउ हो सकता है. तो आस्क योर सप्लायर कि आपने 3B फाइल नहीं किया, प्रॉपर्ली 3B फाइल करो. मेक क्रेडिट पॉलिसीज इन दैट टर्म्स कि आपका 3B बराबर फाइल हो, आप चेक करें, उसके बाद आप पेमेंट रिलीज करें.
ये बेसिक चीज है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। आपने क्लेम करने के लिए आपने भी 3B का रिटर्न फाइल करना चाहिए, ये कई बार छूट जाता है। एंड 3B फाइल होता है, इनपुट टैक्स रेट क्लेम होता है सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे। सर अगर जीएसटी में 10 लाख का टर्नओवर बताया लेकिन 3B में 5 ही लाख का रहा, तो ये कैसे वेरीफाई होगा कि उसने मेरा पेमेंट किया है 5 लाख? मेरा कुछ बिल चीजें 2 ही तो लाख सिस्टम, हर एक चीज सिस्टम पे नहीं है, हर एक चीज सिस्टम पे नहीं है, बट रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं एटलीस्ट। आप जब उससे परचेस कर रहे हो तो आप ये तो बिलीव कर रहे हो कि उसने मेरा किया है कि नहीं, कि आप उसको चोर समझ के तो बिजनेस नहीं कर सकते। अगर कल डिपार्टमेंट जाके मेरा डिपार्टमेंट में आप वेरीफाई नहीं कर सकते, आपको आपके नहीं। डिटेल्स नहीं देगा। नहीं, अगर कल जाके नोटिस आता है तो डिपार्टमेंट क्या मेरे को डिसअलाउ करेगा इस बेसिस पे कि उसने 5 ही लाख का टैक्स भरा है, तो वो डेफिनेटली, आपका नहीं है। डेफिनेटली। तो उसके लिए मैं लड़ सकता हूँ कि ये 5 लाख का तो मेरा उसने डाला है। सो 37A के हिसाब से शुरू करो। आपका पेमेंट जो आपका बिल से रिलेटेड पेमेंट है वो बिल टू बिल सिस्टम है नहीं जीएसटी में, तो उसने कितना भरा और कितना नहीं भरा ये आप नहीं देख सकते हो। आपका फैसिलिटी है कि 3B भरा है कि नहीं भरा है, उसने नील का 3B भर दे, एटलीस्ट सांत्वना तो रहेगी भैया भरा हुआ है। उसके बाद जो 2 साल के बाद डिपार्टमेंट करेगा तब देखेंगे क्या होना है। एटलीस्ट आज की तारीख में आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा है। आज की तारीख में वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। गुड्स कई बार लॉट्स में रिसीव होते हैं, एक साथ नहीं आते। बड़े बड़े कंपनीज में आजकल जो कैपेक्स की एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स सिंगल कंसाइनमेंट में नहीं आता, मल्टीपल कंसाइनमेंट में आता है। तो जब तक आपका कंसाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने एडवांस पे किया है, एडवांस पे इट इज नेसेसरी कि सामने वाला जीएसटी आपसे रिकवर करे, बट सिंस इट इज एडवांस, इट इज नॉट रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी ऑन दी एडवांसेस वी हैव पेड। आपके बुक्स में रखा रहेगा, जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट होगी या रिसिप्ट कंप्लीट होगा तब आप उसका इनपुट टैक्स रेट ले सकते हैं। एडवांसेस पे इनपुट टैक्स रेट लेने के बहुत जगह हुआ है, बाद में डिसअलाउ होता है, 73 में इंटरेस्ट आती है, पेनल्टी आती है, आपको अननेसेसरी आपकी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है। एंड हियर वी आर हियर टू सेव अवर मनी। वन मोर थिंग कि 180 डेज के अंदर आपको सप्लायर को पेमेंट कर देना है विद द बैकग्राउंड ऑफ सेक्शन 43 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये प्रोविजन काफी ऐसा लगता है कि रिलेवेंट नहीं होगी, बट 180 डेज में पेमेंट नहीं होता है। आपके डिस्प्यूट्स है कुछ है तो आप उसके ऊपर मार्कअप कर लीजिए कि डिस्प्यूट है, एंड खुद होके आपका आईटीसी आप रिवर्स कर लीजिए। हो सकता है सप्लायर ने प्रोडक्ट गलत दिया हो जो बिल पे दिया है, क्वालिटी डिफरेंस हो कुछ भी हो, 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं होता है तो आपका आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगा 16(2) प्रोविजन 4। अगर किसी समय आपका आईटीसी क्लेम करना रह गया है तो इनका मैक्सिमम क्लेम अप टू किसी फर्स्ट फाइनेंशियल 24-25 का आपका आईटीसी क्लेम करना रह गया है तो आप 30 नवंबर 2025 तक उसका क्लेम कर सकते हो। मतलब फॉलोइंग 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यू कैन क्लेम दी इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। सेक्शन 17 में दिया आईटीसी किस किस इसमें ब्लॉक होगा जिसका आपका इनपुट नहीं मिलेगा। सो वी विल कम टू दैट। ITC should be used for the products which are used for business, product or services, goods or services used for furtherance of business। पर्सनल यूज की चीजों का ITC नहीं मिलेगा। If there are some products like mobile phones, आपका मोबाइल फोन पर्सनल भी है और बिजनेस के लिए भी यूज हो रहा है, तो एटलीस्ट आप प्रोपोर्शनेट 50-50 उसका इनपुट क्रेडिट ले लीजिए, पूरा 100% मत लीजिए। जनरल प्रैक्टिस इज दैट कि 100% ले लेते, लेकिन असेसमेंट में फिर वो ऑफिसर डिसअलाउ करता है 50% कि आपका पर्सनल और रेगुलर बिजनेस का है। इफ यू कैन प्रूव कि दिस इज माय मोबाइल, इसमें सिर्फ मेरे बिजनेस कॉल आते हैं, पर्सनल कॉल नहीं आते, मार्जिनल अगर 2-5% कॉल आते हैं तो ठीक है, यू कैन क्लेम दैट। और मेरा पर्सनल फोन अलग है। इंडस्ट्रीज में होता है कई डायरेक्टर्स लोग अपने बिजनेस कॉल्स फोन अलग रखते हैं और पर्सनल फोन अलग रखते हैं, तो आप बिजनेस फोन का 100% ले सकते हैं, लेकिन जहाँ कॉमन फोन है तो एटलीस्ट मोबाइल के लिए आप अवॉइड कीजिए कि फुल 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट ले, 50-50 आप ही खुद कर लीजिए। आपका जो 50% बचा हुआ है वो डिसअलाउ हो रहा है
जीएसटी में, बट इनकम टैक्स में आपको उसका क्रेडिट मिल जाए, आपको पीएनएल में आप उसको बुक कर सकते हो, आप उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। सो आप प्लानिंग उस हिसाब से करिए कि आपका आईटीसी जीएसटी में आप ना फंसे और इनकम टैक्स में आप बेनिफिट ले सकें। अब जनरली क्या होता है, बिजनेस में डिफरेंट रेट ऑफ प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं, either नील रेटेड 5%, 18% एंड 28%। और आपका इनपुट जो है 18% से आ रहा है एंड यू आर डीलिंग इन नील रेटेड और 18%, तो आपको प्रोपोर्शनेट जीएसटी आपको उसके हिसाब से डील करना है। एग्जाम गुड्स में भी डील करते हैं तो इनपुट प्रोपोर्शनेटली डिसअलाउ होगा। अगर एग्जाम में डील कर रहे हो तो जितना पोर्शन आपका बिजनेस में एग्जाम प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो उतना आईटीसी आपका डिसअलाउ होगा। आप पूरा क्लेम आईटीसी का मत करिए, डिसअलाउंस जो है आप खुद ही आपका रिवर्स कर लीजिए, तो यू विल हैव अ बेटर पोजीशन। आज की तारीख में आपको वर्किंग कैपिटल मिल रहा है, पर जब असेसमेंट होता है या बिजनेस ऑडिट्स होते हैं तब वो डिसअलाउ होगा, आपको काफी हेवी कॉस्ट देनी पड़ेगी। 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड 10% का मिनिमम पेनल्टी है। और आप 3 साल भी यूज करते बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10 to 11 या 12% के ऊपर जाएगा, यू आर पेइंग 6% मोर। और ज्यादा साल के लिए लेना है तो आपका कैस्केडिंग इफेक्ट कॉस्टिंग का बहुत ज्यादा होगा इंटरेस्ट में। सो जो भी डिसअलाउंसेस है उसको पहले मार्कअप कर लीजिए और आपके इनपुट में से उसको कम कर लीजिए। Now we come to the section 70 ब्लॉक क्रेडिट्स, जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एनी गुड्स और सर्विसेज which are used for personal purposes are not allowed। बिजनेस से रिलेटेड और बिजनेस फर्दर्स के जो भी प्रोडक्ट्स है, गुड्स है, सर्विसेज है, आप उसका पूरा क्रेडिट ले सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस। एक बहुत कॉमन फिनोमेना भी देखने मिलता है कि पैसेंजर व्हीकल्स, कार ले रहे, लग्जरी कार या कोई भी कार ले रहे, सर उसके इनपुट ले लेंगे, और जो डीलर बहुत आराम से बोलता है सर ले लीजिए इनपुट, सब लोग लेते हैं, डेफिनेटली वो गलत बोल रहा है। पर्सनल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल रजिस्टर्ड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट, जिसकी कैपेसिटी 13 सीटर से कम हो, उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। उससे रिलेटेड आपका जो भी रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस होगा वो भी नहीं मिलता है। जनरली आपके टूबी में डेटा आ जाता है कि जो भी आप दिखता नहीं है आपके सीए को फॉरवर्ड कर देते हैं, जो भी प्रोफेशन आपका है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, वो पूरा इनपुट क्रेडिट क्लेम कर लेता है। सो ईयर एंड में भी वो रिकंसिलिएशन में रह जाता है। सो मेक अ हैबिट ऑफ रिकंसाइलिंग योर टूबी मंथ ऑन मंथ बेसिस। दिस विल गिव एन एडेड एडवांटेज टू यू कि आपका हर महीने में कौन से डीलर ने नहीं पैसा भरा है और आपका वर्किंग कैपिटल उसमें ब्लॉक हो, आपको पता चलेगा, आप उसको फॉलो अप करके नेक्स्ट मंथ के लिए बोल सकते हैं जीएसटी नहीं भरा है, आप जीएसटी पे करो, उतना मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। अदरवाइज आपको तो आउटपुट पे टैक्स देना ही है, इनपुट पे भी आप टैक्स दे चुके हो। इसमें हम नॉर्मल बोलते हैं, जैसे प्रणव ने बोला है कि एवरी क्वार्टर अपने अपने सीए के साथ बैठना चाहिए। क्वार्टर लेके बैठो लेकिन सीए के साथ बैठो। मैंडेटरी है कि उसके साथ बैठो, आपके बिजनेस प्लान्स, आपके जीएसटी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब चीजें वो बताएगा। सो मेक अ हैबिट ऑफ जीएसटी में मोस्टली मंथली रिटर्न्स है, मंथली टू बी आपका टू बी आ रहा है, तो मेक अ हैबिट कि 3 महीने का तो एटलीस्ट मुझे पता चले कि मेरा कितने लोगों ने नहीं भरा है। मंथली रिकंसिलिएशन करेंगे तो इट्स वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट क्वार्टरली करिए, 6 महीने में मत करिए। 6 महीना मतलब 180 डेज आपका इनपुट वैसे डिसअलाउ हो जाएगा, और आपने जो इनपुट क्लेम किया है उसका सेक्शन 50C में आपको 18% से इंटरेस्ट देना है, और जब आपका पेमेंट को क्लियर होगा या बाकी चीजें क्लियर होगी तब जाके आपका इनपुट मिलेगा आपको। सो इनपुट टैक्स रेट के लिए थोड़ा सा संभल के, फैसिलिटी बहुत अच्छी है बट देख के। सेम विथ मोटर व्हीकल्स में एक चीज है कि अगर आप जो एक्सेप्शन है वो ये कि अगर आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, लाइक रेंटिंग ऑफ द व्हीकल और गिविंग ट्रेनिंग ऑन द व्हीकल, जैसे रेंटिंग मतलब टैक्सी सर्विसेज वगैरह हो गई है, ट्रेनिंग जो ड्राइविंग स्कूल्स है उनके पास अगर वो व्हीकल यूज कर रहे हैं, या फर्दर ऑफ बिजनेस मेरा डीलिंग ही मोटर व्हीकल का है तो इनपुट क्रेडिट अलाउ होगा। सेम विथ एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल वेसल्स, एयरक्राफ्ट यूज होते हैं बिजनेस के लिए तो वहां पर आपको अलाउ हो जाएगा इनपुट, लेकिन अगर पर्सनल यूज के लिए सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए तो नहीं होगा। जैसे बॉम्बे में मोस्टली होता है कि एयरक्राफ्ट आपके लेते हैं कि बस फर्स्ट सेंटर से सेकंड सेंटर जाना, एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री, सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए कन्वेंस है वो,
तो उसका इनपुट आपको अलाउ नहीं होगा, बट यू आर टेकिंग गुड्स विद दैट, जैसा DHL है, FedEx है, जो आपका खुद अपने एयरक्राफ्ट रहते हैं, इनके मटेरियल सप्लाई, गुड सप्लाई के लिए उसका इनपुट रेट उसको मिलेगा, बट नॉर्मल नहीं मिलेगा। उससे रिलेटेड रिपेयर मेंटेनेंस जो भी है, इंश्योरेंसेस, वो भी डिसअलाउ है, ब्लॉक्ड है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे होटल में, होटल का अकोमोडेशन जो है, सब आते हैं उसके ऊपर, वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है अभी इससे। Supply of goods and services both for food, beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic, plastic surgery, ITC are not allowed in this subject. कोई प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, अपने आउटडोर कैटरिंग लिया है, तो उसका ITC नहीं मिलता है। मैं लेक्चर देने के मेरे बहुत अच्छे है कि मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट करके पार्लर से जाकर तो मुझे भी इनपुट नहीं मिलेगा, मेरा एक्सपेंडिचर है। मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर, इसका भी ITC ब्लॉक है। Travel benefit extended to employees on vacation or leave for home travel, these are also disallowed. अभी रिसेंटली सबसे ज्यादा डिस्कशन में चल रहा है, दैट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कंपेयर्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पस। सफारी रिट्रीट का केस सभी काफी लोगों ने सुना होगा, काफी चर्चा में था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था सफारी रिट्रीट पे, वेदर इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज फॉर लेटिंग आउट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लांट और नॉट। तो उस बेसिस पे दिया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन दे दिया इफ इट इज प्लांट डेफिनेटली आप इनका इनपुट ले सकते हो, बट बाद में गवर्नमेंट ने फरवरी में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया उस प्रोविजन का। नाउ यू कैन नॉट क्लेम ITC और इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी टाइप की हो, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का ITC नहीं क्लेम कर सकते हो। इवन आपका टीवी टेलीकम्युनिकेशन जो टावर्स रहते हैं उसकी भी ITC आपको डिसअलाउड है, ब्लॉक्ड है। बट इट इज इफ इट इज फर्दरनेस ऑफ बिजनेस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मेरी नेचर ऑफ बिजनेस ही वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे इनपुट अलाउ होगा, मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया, फर्दर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड करेगी। फर्दरनेस ऑफ बिजनेस ऑफ सेम नेचर, तो आपका इनपुट टैक्स रेट अलाउ होता है, अदरवाइज ब्लॉक्ड है। गुड स्टोलन रिटर्न ऑफ, क्योंकि या गिवन एज गिफ्ट बिकॉज इट इज एन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो उसका भी आपका इनपुट डिसअलाउड है। एक सेक्शन 74 में अगर आपने टैक्स पे किया है आफ्टर असेसमेंट, तो उसका आप इनपुट नहीं ले सकते। It is clearly section 74 is something you have done a fraud, misstatement of miscommunication, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट आपको बोलती है, डिपार्टमेंट बोलता है कि आपने टैक्स पे किया है, तो नाउ यू कैन नॉट क्लेम क्रेडिट ऑफ दैट। योर इंटेंशन वाज नॉट टू क्लेम द क्रेडिट बट टू डिफ्रॉड द गवर्नमेंट विद क्लेमिंग रॉन्ग ITC और समथिंग, सो उसका भी आपको इनपुट अलाउ नहीं होगा। प्रोडक्शन के समय जो वेस्टेजेस होता है, अगर इफ इट इज नॉर्मल वेस्टेज 2% to 5% जो भी इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से डिसाइड है, देन यू कैन क्लेम द इनपुट ऑफ एवरीथिंग। अदरवाइज अगर एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर है उसमें, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा वेदर इट इज एबनॉर्मल और नॉट। अगर एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर है तो दैट एक्सटेंड आपका ITC डिसअलाउ होगा। नाउ द इंपॉर्टेंट इज ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। इसमें वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होते हुए हमने काफी बार देखा है। नॉर्मली होता क्या है, IGST, CGST और SGST, जब 2017 में GST आया था, तो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन वाज IGST कैन बी यूटिलाइज्ड विद CGST ओनली, नॉट SGST। तो फर्स्ट ऑफ ऑल IGST CGST के साथ एडजस्ट हो जाता था, एंड CGST वहां पर बचा हुआ यूटिलाइज होता था, एंड SGST पेमेंट करना पड़ता था। इफ योर नेचर इज कि आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट इन स्टेट, तो आपका CGST तो हमेशा जीरो रहता था, बट SGST आपका पाइलअप होता था और आपको उसके लिए टैक्स पे करना पड़ता था। CGST का इनपुट जमा होते जा रहा, बट इट इज नॉट यूजफुल। सो द लेटर ऑफ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि आपका IGST आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो CGST एंड SGST के हिसाब से। तो व्हाइल मेकिंग द पेमेंट अंडर 3B, प्लीज मेक श्योर इंश्योर दैट कि आपका GST जो एडजस्टमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है, ITC एडजस्टमेंट। अदरवाइज SGST में ब्लॉक क्रेडिट हमेशा लगा रहेगा और आपका पैसा ब्लॉक होते जाएगा। और आपका SGST, आपका जो CGST एंड SGST वो इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं होता है।
आईजीएसटी का कहीं से भी हो जाएगा। अगर आपके पास एसजीएसटी ज्यादा कम है तो आप आईजीएसटी 100% एसजीएसटी से यूटिलाइज कर सकते हो। और आपके पास सीजीएसटी कम है और आईजीएसटी ज्यादा है तो आप कर सकते हो 100%। वो आपका चॉइस है कितना है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड यू कैन यूज दिस टू एज फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग कि आपका वर्किंग कैपिटल मेरा कम से कम लॉक हो, मेरा कैश आउटफ्लो कम से कम हो, उसके हिसाब से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो प्लीज इंश्योर कि आपके 3B जब आप सेटल करते हो लायबिलिटी तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे यूटिलाइज करें देखिए, ध्यान दें। उसके लिए आपको एक चीज आपके तरफ से एफर्ट है कि आप लास्ट मोमेंट पे आपके प्रोफेशनल के पास ना जाए, अदरवाइज उसके आ जाएगा वो जो सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करते हैं उसके बटन दबेगा सर इतनी लायबिलिटी है। तो उससे बेटर है कि आप उसको पहले देख लें कि मेरी लायबिलिटी कैसे आने वाली है, वो कौन से हेड में एडजस्ट करना आईजीएसटी मुझे बेटर है। इनपुट और आउटपुट का नेक्सस बहुत ज्यादा नहीं है, बट मेंटेन करिए क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मटेरियल कुछ और खरीद रहे बेच कुछ और रहे, अदरवाइज फेक इनवॉइसिंग में आप फंस जाएंगे। एंड एक वार्निंग है कि फेक इनवॉइसिंग और ये जो जितना भी बिलिंग कंसेप्ट चल रहा है बहुत लुक्रेटिव लगता है आज की तारीख में। प्लीज अवॉइड दोस थिंग्स, क्योंकि जब उसके इम्पैक्ट आएंगे आपके पास 2 साल 3 साल के बाद तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। 74 में असेसमेंट होगा, 100% पेनल्टी, 122 की पेनल्टी लगेगी, 74 की पेनल्टी लगेगी और इंटरेस्ट कॉस्ट भी काफी हेवी आएगा। और आपका आईटीसी आपको भरना ही पड़ेगा जो आपने लिया है, उसके साथ जो बिलिंग के समय आपने खर्चा किया वो भी। तो ओवरऑल अगर आप टोटल करेंगे तो इट विल गो अप टू द कॉस्ट ऑफ योर गुड्स। जो 18% का जीएसटी आप लेते हो उसके ऊपर 100% पेनल्टी 36, 3 साल के बाद 18% का अगर ब्याज आता है तो 54% वो आ गया। 54 और 36 आपका 90 तो यही हो गया। और आपने जो भी खर्चा उसके समय किया तो ऑलमोस्ट इट कम्स टू द कॉस्ट ऑफ योर गुड्स। तो आज की तारीख में भले ही लुक्रेटिव लगता है बट प्लीज अवॉइड डूइंग दोस थिंग्स। आप अपने असेसमेंट जो 3B दिया है, दिस वेरी गुड थिंग ऑफ जीएसटी कि आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे सब चीज दी। आपका 2B में अगर इनपुट दिख रहा है तो प्लीज एनालाइज कि मेरे को डिसअलाउएबल अगर इनपुट्स है तो मैं उसी समय 3B में उसको डिसअलाउ कर दूं और अपनी प्रॉपर लायबिलिटी कैलकुलेट करके भरूं। रादर देन मैं पूरा इनपुट ले लूं बाद में देखते बैठूं कि मेरी लायबिलिटी कैसे जा रही है कैसे हो रही है। सो बेटर है कि आपका 3B के असेसमेंट के समय आप थोड़ा सा विजिलेंट रहे और आपका लायबिलिटी प्रॉपर्ली कैलकुलेट करें तो आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। एंड रिकंसिलेशन ऑफ मंथली 2B इज ऑफ utmost इम्पोर्टेंट कि आपके कौन से वेंडर्स ने आपका पैसा नहीं भरा, जीएसटी नहीं भरा, ये आपको पता चलते रहेगा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जीएसटी से रिलेटेड, इनपुट से रिलेटेड। और इसमें हमने जो भी डिसअलाउंसेस है और पेनल्टीज है उसकी बात करी है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे इस पे तो आप बताइए। और सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे हमारी कंपनी कोई बिजनेस मीटिंग लेती है जी कहीं आउट ऑफ सिटी जी या आउट ऑफ इंटरस्टेट है, तो वहाँ के होटल का अकोमोडेशन जो बिल्स होते हैं उसमें वो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगाते हैं, बिल्कुल। भले ही वो इंटरस्टेट है। और क्या हम कंपनी का बिजनेस मीटिंग है पर्पस तो वो हम क्लेम कर सकते हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, आपने सर्विस कहाँ ली, इंटरस्टेट। आपने जिस सिटी में सर्विस ली होगी, समझ लो यहाँ से रायपुर में सर्विस ली है तो आपने सर्विस रायपुर में ले ली। डेस्टिनेशन बेस डेस्टिनेशन बेस है तो आपको वो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगाएगा। पर वो क्लेम नहीं कर सकेंगे? क्लेम नहीं कर सकते ना क्योंकि आपका इंटरस्टेट आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो, आप सीजीएसटी वहां का नहीं क्लेम कर सकते। पर गलत है। गलत नहीं है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। आप उसके लिए वे आउट ऐसा है कि आप यहाँ से एक एजेंसी से बुक कराइए, सस्ते सभी में लीगल वे, ऐसा कोई नहीं कि आप यहाँ पर कोई ट्रैवल एजेंट से बुक कराइए, उसको बोल दीजिए भैया मैंने आपको होटल वहां का फलाना बुक कर दीजिए और आप मुझे आईजीएसटी दे दीजिए। आपका जो भी जितने पोर्टल्स है सभी आपको आईजीएसटी लगा के दे देंगे। तो एजेंट जो है वो एजेंट के आपको थ्रू अगर आप बिलिंग ले लेते हो तो आपको आईजीएसटी लगा के मिल जाएगा, आपको पूरा इनपुट मिल जाएगा। एजेंट का रजिस्ट्रेशन हर एक स्टेट में है तो वो दोनों हिसाब से आपका क्लेम कर सकता है। तो वो कॉस्ट में नहीं कोई भी फर्क, आपका पूरा जीएसटी लॉस हो रहा है। अगर एजेंट ने आपसे 5% कमीशन एक्स्ट्रा ले लिया या 10% में कमीशन एक्स्ट्रा ले लिया तो आप 8% तो सेव कर रहे हो। तो वही आपको कॉस्ट बेनिफिट हमारा निकालना 100% इनपुट लॉस हो रहा है। कुछ ना कुछ एजेंट लेगा और क्या करेगा। बट
जो हमारे एक्सपीरियंस ऐसा है कि मोस्टली आपके जो पोर्टल्स है वहां पर रेट कम मिलेगा डायरेक्ट से, तो आप वो यूज कर सकते हो फैसिलिटी। एनी क्वेश्चंस? बोलिए। कुछ पार्टियां सर पैसे नहीं देती, यानी अब 6 महीने एक साल 2 2 साल हो गए और हमने तो उनका टैक्स भर दिया। वो 6 महीने वाली जो क्लॉज है उसमें कुछ हमको हेल्प हो सकता है? हाँ सर, क्लॉज में हेल्प नहीं हो सकती, दो चीजें हो सकती है उसमें। एक जो डिसअलाउंस है वो आप ही के ऊपर है, उसमें आप, वो पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सेल कर दिया, आपको मटेरियल यूआरडी परचेज कंसीडर करके आपको इनपुट डिसअलाउ हो रहा है कि आपने पेमेंट नहीं करे, आपने उनका डिसअलाउंस है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम क्रेडिट नोट रेज कर सकते हो, बट सप्लाई हो चुका है, मटेरियल जा चुका है, तो क्रेडिट नोट कितना रिलेवेंट रहेगा आपको आपके नेचर से देखना पड़ेगा। क्रेडिट नोट रह के मैं सिर्फ जीएसटी रिवर्सल कर रहा हूँ क्या, स्टॉक वापिस नहीं आ रहा, सो वो कॉस्टिंग लगती है सर। इसलिए मंथली अगर आप रिकंसिलेशन करके रखोगे और डीलर से बेटर रिलेशन रखे, वही बेटर है। नहीं, हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं सर, उसमें हो नहीं पाता ये, तो वो तो क्योंकि हम थर्ड पार्टी पे डिपेंड हो जाते हैं। हमारा मटेरियल वहां गया, उसका सिविल कंस्ट्रक्शन ही चालू है, कुछ ना कुछ डिले हो रहा है, और उसके बाद में फिर उस समय 6 महीने निकल गए। यहाँ तो पूरा जीएसटी भर के बैठ गए और वो पेमेंट नहीं देता, फिर उसकी नियत में खोट आ जाती है, कुछ ना कुछ बहाने मारता है। सर बिल ऑफ सप्लाई या फिर प्रोफोर्मा इनवॉइस पे मटेरियल भेजी एक चीज हो सकती है। वो ई वे बिल बनाना पड़ता है सर, तो उसका आपका रिटर्न भी। बिल ऑफ सप्लाई पे आपका ईवे बिल बन जाता है, डिलीवरी चार्ज नोट पे ईवे बिल बन लेकिन ये जाता जो है। आपका मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उसमें कोई पेआउट भी नहीं ना एक्चुअली, इनको तो बिल रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड केस भी डालना है, इसके लिए भी करना जरूरी है। सिर्फ एक ही है, कुछ जगह जो आ रहा है सचिन, आजकल ये बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आ ही रही है, सिर्फ वो एमएसएमई है कि अदर रिकवरी एक्ट वाला ही देगा, जीएसटी में तो आपको बनना ही है। तो आपको रिकवरी एक्ट के जो दूसरे प्रोविजंस है वही आपको लेगा, लिटिगेशन में जाना पड़ेगा। लिटिगेशन के अलावा ऑप्शन और ही कोई नहीं बचता ऑप्शन एक्चुअली नहीं देखा मिलता जाए सर। तो जीएसटी वो में तो कहाँ सर आप धंधा करेंगे कि लिटिगेशन में जाएंगे? या जैसे तो एक उसी का मोड़ है, एडवांटेज सामने वाला लेता है। नहीं, ये क्रेडिट नोट अगर ऐसा कर सकते हैं, कुछ आप जो बोल रहे थे एक लॉ है। सर क्रेडिट नोट है, लेकिन क्रेडिट नोट में आपको गुड्स रिटर्न नहीं है, सिर्फ नॉन पेमेंट के लिए आप क्रेडिट नोट रेज नहीं कर सकते। अब एक ही चीज हो गई है, थोड़े से तो जो अच्छे वो है बायर है, उनमें तो क्या एमएसएमई एक्ट भी लागू हो गया, 43 बीएच इनकम टैक्स का भी आ गया है कि उनका डिसअलाउंस हो रहा है काफी बार, तो उस चक्कर में काफी पे कर रहे हैं, या 180 डेज पे ऑडिट में वो लोग काफी फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट ऑडिट में, तो उसके कारण भी लोग कर रहे हैं। लेकिन जो ईमानदार है, जो ऑनेस्ट है, वही करेगा, बाकी जगह तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो लिटिगेशन के अलावा एक्चुअल में कोई ऑप्शन नहीं बचता मेरे ख्याल से। इनके सप्लाई में इनको पैसा नहीं दिया, उसके लिए कोई ऑप्शन जीएसटी में भी नहीं है। नहीं, सामने वाले का इसमें उसका इनकम टैक्स का डिसअलाउंस होगा एक पार्ट, 180 डेज में पेमेंट नहीं करा, जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट आपके पास रिकवरी का और कोई मैकेनिज्म इनके पास नहीं है। कोई मैकेनिज्म नहीं है, इनको अब तो टैक्स पे करना ही है। कुछ जगह केसेस में जो किए हैं कि अगर वो एमएसएमई है जो सप्लायर है, तो उसने एमएसएमई एक्ट में रिकवरी मैकेनिज्म है, तो बहुत सारे लोग एमएसएमई एक्ट में एक्शन लेके वो रिकवरी कर रहे हैं, क्योंकि एमएसएमई के डिसीजन भी आ रहे हैं फास्ट और एक्शन भी हो रही है, और काफी एडवोकेट्स है जो एक्सक्लूसिवली एमएसएमई में काम कर रहे हैं इनकम टैक्स, वो पोर्टल देखेंगे ना कहीं पे, तो एमएसएमई के रिकवरी एजेंट मिल जाते हैं, तो कैन वर्क विद देम, तो उससे फास्ट रिकवरी भी हो रही है। काफी जगह ऐसे लोगों के फीडबैक आया हम लोगों को दिया है, समाधान तो, लेकिन पोर्टल, आप एमएसएमई है तो यू कैन गो फॉर समाधान पोर्टल में। जीडीआई के पास ही है उसका केस। अगर एमएसएमई यानी एसएसआई रजिस्टर्ड फर्म को एमएसएमई बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स, even trading firms are also eligible for MSME registration. Turnover criteria and capital transmission investment है, by and large sufficiently है, normal case में तो हर कोई कवर है, अगर हो गया तो if you want तो वो की पॉसिबल, तो एमएसएमई एक्ट है ना, इसमें देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट वांट के एमएसएमई टू ग्रो, टू उनके ग्रोथ के लिए देयर आर लॉट मेनी मेजर्स आर देयर, तो हम एमएसएमई एक्ट पे एक ले लेंगे, जो एमएसएमई एक्ट में काम कर रहे हैं, जो रिकवरी करते हैं, इफ यू पीपल वांट वी कैन हैव दैट सेशंस, तो उसको इफेक्टिवली यूज करते हैं ना, तो काफी जगह पैसे आ जाते हैं। तो एक बार वो एक्सप्लोर करें जो सस्ता ऑप्शंस है, rather than going in for the litigation। जो लोग एमएसएमई एक्ट जानते हैं ना, आई नो द पीपल जो वीआई में आए थे, तो उन्होंने आज से 5 साल पहले 7 साल पहले पैसे ऐसे नहीं आ रहे, लीगल नोटिस से नहीं आ रहे, एमएसएमई एक्ट में नोटिस दिया तो आने लग गए। तो देयर आर केसेस
अब तो क्या किया, एमएसएमई एक्ट को गवर्नमेंट स्ट्रांग भी बना रही है। जितनी कंपनीज है, बड़े कॉर्पोरेट्स है, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी है ना, उसमें मैंडेटरी कर दिया, उनके कंपनीज एक्ट में रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी कर दिया इस फाइनेंशियल में प्रणव, कि उनको रिपोर्ट करना है एमएसएमई में कितना पैसा देना था, नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिक भी एक्शन होने लगेगी। तो देयर आर केसेस। तो मेरे को लगता है एमएसएमई एक्ट के लिए बहुत छोटा सा एक्ट है एमएसएमई, बट बहुत पावरफुल एक्ट है। सर अभी एक और क्वेश्चन है सर, या जैसे हम लोगों ने माल दिया उनको, हमारा ई वे बिल वगैरह सब क्रिएट किया हमने, पार्टी क्या बोलती है कि तेरा जीएसटी तो तू भैया अगले महीने या तेरा क्वार्टर जब आएगा तब भरेगा, मैं तेरा जीएसटी रोक के बाकी पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, वो जीएसटी भी रुक गया वहां। अब दूसरी उसकी नियत में फिर फोर्ट और वो जो सब कुछ अभी कहानी आपको बताई वो रिपीट हुई, हमने यहाँ जीएसटी भर दिया, मतलब ना आया और यहाँ गया भी डबल, मतलब वो 18 का 36% जा चुका है हमारे पास से। तो अब ये इतना टीडियस हो जाता है कि एब्सोल्युटली। धंधा करें कि ये करे, इसको यानी गवर्नमेंट ने मतलब एटलीस्ट इंश्योर करना चाहिए कि आपका लिटिगेशन अपार्ट है, आपको तो पेमेंट पूरी करनी है। आपको जो जीएसटी का बिल आया है उसके अगेंस्ट में पूरा पैसा दीजिए। जब हमारे पास पैसा नहीं आया गवर्नमेंट तो हमसे ले लेती है। नहीं, बात बराबर है, आपका कहना एकदम ठीक है। एक्चुअली क्या है, इसका सेकंड साइड भी था एक्चुअली। अब क्या हो गया, मैं किसी से माल परचेज कर रहा हूँ, सामने वाला जीएसटी अगर नहीं भरता है ना उसका, तो मेरे को भी क्रेडिट नहीं मिलता है। तो कुछ कंपनीज ने सिस्टम ये बना लिया, सामने वाले का दिखेगा तो ही मैं पेमेंट करूंगा। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने ये किया कि वो पेमेंट रोक के भी बैठ के नहीं कर रहे एक्चुअली। तो उसके लिए तो लिटिगेशन जो एमएसएमई एक्ट जहां जहां यूज हो सकता है, दैट कुड बी द ओनली ऑप्शंस, वहां एक उसको यूज करना कुछ चाहिए। तो सर बड़े कॉर्पोरेट से उनके साथ कहाँ लड़ेंगे, तो कभी फैसले ही नहीं होंगे लगता हो। सर इसीलिए इनको बड़ी कॉर्पोरेट्स के साथ लड़ना चाहिए, इसलिए एमएसएमई को स्ट्रांग बनना है। नहीं, दोनों चीज है। क्या होता है, लड़ने का सेकंड साइड भी है ना, आपको उन्हीं के साथ मिलके काम करना है, उन्हीं से कमाना है, उन्हीं को सप्लाई करना है। देन यू कैन नॉट फाइट विद दैट कि नेक्स्ट टाइम बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है बिकॉज ऑफ दैट। अब ये तो ऐसा है कि यू हैव टू बैलेंस आउट ईच एंड एवरीथिंग एक्चुअली, कि उनके साथ काम भी करना है, उनसे झगड़ा भी करना है, उनसे पैसा भी लेना है और उन्हीं को देना भी है। तो उसके कैसे डिप्लोमेटिकली हैंडल करके उसको वे आउट कर सकते हैं, दैट्स द इश्यू दैट यू नीड टू लुक अपॉन प्रणव। ऐसे भी रहेगा ना। बाकी लेकिन सर जैसे बिल के अगेंस्ट में जो जीएसटी गया है, मतलब हम डिमांड करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए ही कर रहे हैं, एटलीस्ट वो कंपलसरी होना चाहिए हर एक के लिए। बात बराबर है, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ एक छोटा सा किस्सा था, बोले महाराज जी एक बताओ, ऐसा काम बताओ जिसमें लोग आए, मैं अपना अपना काम कर रहा हूँ, पैसे मुझे देके चले जाए। बोले पब्लिक टॉयलेट खोल ले बेटा, वही है क्या। तो सिर्फ ये है कि मतलब गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स लेना है गवर्नमेंट को, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। आप 10 बार लेटर दे दो, भैया इन्होंने मेरे को माल बेचा है, मैंने इसको जीएसटी दे दिया, इसने रिटर्न नहीं भरा, मेरे को तो क्रेडिट दे दीजिए आप। नोथिंग, भैया तुम्हारा काम है, तुम देखिए, आप फॉलो करिए उनसे, वो भरेंगे तो ही हम आपको क्रेडिट देंगे। दिस इज द वे, मतलब गवर्नमेंट का तो सिंपल स्टाइल ऑफ अगर वर्किंग। ये नहीं भरते तो उसमें भी कोई कानून है कि हम लोग उनको प्रेशराइज करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनसे लोहा लिया और इन्होंने बिल दिया था, इन्होंने भरा नहीं है जीएसटी, तो इनको मैं प्रेशराइज कर सकता हूँ? इनको डर क्या है कि इन्होंने नहीं भरा और मैं वो डर बता सकता एक्चुअल में वेरी ऑनेस्टली कहीं कुछ नहीं है। पावर जो है, तीन मुंडी जो है, पूरे पावर जो है वो टेबल पे है, जो काम नहीं करते। आपका तो काम हिसाब से होना चाहिए, अपने जीएसटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, एंड देन जीएसटी डिपार्टमेंट शुड हैव टेकन दैट पार्ट। अपन ने, हम लोगों ने विदाउट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो यही दिया है, फिर सामने वाली पार्टी बोलती है आप उनको हेल्प कर लो, क्रेडिट नहीं दे रहे हो लेकिन हेल्प तो करो। उसने पैसा दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया, फिर भी सामने वाला नहीं भरता है, नॉट गिविंग द क्रेडिट टू मी और नॉट हेल्पिंग मी इन रिकवरिंग दैट अमाउंट इज अ लॉस टू मी। बट नो वेयर, ऐसा आज की तारीख में तो नहीं हो रहा है। होपफुली अब जो सर ये तो लेकिन 420 होगी ना एक टाइप, हो ही रही है, एवरीवन हो ही रहा है। एटलीस्ट तो उसमें क्रिमिनल केस ही सारा उसमें इंस्टिगेट करके बट जीएसटी डिपार्टमेंट शुड कम आउट विद दैट। और अभी तक फिलहाल क्या हो गया, गवर्नमेंट भी कैसा कर रहा है, उनका पर्पस क्या था। गवर्नमेंट से जब बात हुई थी हम लोगों के रिप्रेजेंटेशन में, सचिन इज अ पार्ट ऑफ द ग्रीवेंस कमेटी जो यहाँ पे मीटिंग लेती है, उनको बोला है भैया इन्होंने नहीं भरा तो मेरे को क्यों डिनाई कर रहे हो आप जीएसटी, मेरा तो पैसा चले गया, लेट यू डू, तो आप फॉलो करो, है ना। उनका कहना है कि इतने नंबर ऑफ असेसिस है, वी डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी कांट डू द फॉलो। तो इसलिए उन्होंने रूल भी ये ला लिया कि इन्होंने रिटर्न भरा है, आपके टूए में दिखता है, देन ओनली दे विल गिव यू द क्रेडिट, अदरवाइज नहीं देंगे। ये उन्होंने रूल ला लिया। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन जा रहा है या जो हम लोग कह रहे हैं उनको, भैया अल्टीमेटली आप भले ही मत दो क्रेडिट, लेकिन मैंने अगर क्लेम किया और मैं आपको बोलता हूं कि इन्होंने नहीं भरा है, आप उसको कॉल करो, आप नोटिस दे दो, क्योंकि यू हैव द पावर टू कॉल हिम, आई डोंट हैव द पावर टू कॉल हिम। और मेरी बात कोई नहीं सुनेगा,
बात इन जो ऑफिसर होते हैं उनकी बात सुननी है, तो दैट इज द मैकेनिज्म, इट कैन गो। बट सूनर और लेटर, एज ऑफ नाउ तो अभी नहीं है, एज ऑफ नाउ तो फाइट ही करना है, बट लेटेस्ट होप इन डेज टू कम वो सिस्टम भी आ जाएगा कि जैसे आप उनको रिपोर्ट करते हो, गवर्नमेंट विल इनिशिएट द एक्शन एंड दे विल डू द फुल। कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस वो लेवल पे भी आने वाले हैं, एंड इट इज इवॉल्विंग। लेट अस होप कि इन आने वाले समय में कहीं ना कहीं वैसा हो जाए। दिस इज व्हाट वी होप फॉर। या एनी मोर क्वेरी वी कैन हैव, क्या कोई सजेशन या डिस्कशन? So एडवांस टैक्स जो हम लोग पे करते हैं, एडवांस टैक्स जो हम लोग पे करते हैं, so what is the advantage of that? Like, is there any way of to reduce it? Because it is like something like I'm purchasing a goods for this month of almost 50 lakhs, 60 lakhs, and I'm giving the bill to my end customer on the next month. So I have to pay the 50 lakhs advance tax in this month only, in the form of GST, and I am receiving from him in the next month. You are talking of the advance tax in GST actually. Yeah. है ना, out of yeah. So- अभी मेरे ख्याल से तो कोई उसमें वे आउट है ही नहीं, उसमें देखा जाए तो कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन होगा। आप परचेस डिले नहीं कर सकते ना। But अगर आप परचेस अगर आपका सामने वाला सिर्फ डिलीवरी चालान पे आपको दे रहा है, तो आप एक चीज प्लान कर सकते हो कि सर आप बिल मुझे नेक्स्ट मंथ रेज करो, या ये मंथ रेज मत करो, नेक्स्ट मंथ रेज करो, तो आपकी जेब से उतना पैसा एक्सेस फ्लो नहीं होगा। आप डिलीवरी चालान पे आप ले सकते हो, लेकिन आपके सप्लायर के साथ रिलेशन कैसे है ये रखना जरूरी है। उसके टर्म्स कंडीशंस, आप बिजनेस कैसे प्लान आउट कर रहे या हो, फिर दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जो टाइमिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन मैटर कर जाता है। जैसे हम लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिकल एक्चुअली कहीं ना कहीं कुछ केसेस में क्या वर्कआउट किया सचिन, कि सामने से परचेस आई थी, अब उसको तो पेमेंट दे रहे थे, जो जिसको सेल करने थे उसको मेल करी अगले महीने में सेल करेंगे, बट बायनांस फाइल हुआ आज ही बिल इशू कर दिया, तो भैया उससे अमाउंट ले लिया और यहाँ दे दिया। मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो है, दैट इज द ओनली वे आउट जो लगता है ऐसे इसमें। ट्रांजैक्शन, आपका टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो बोलते हैं ना, वो प्लान करना पड़ेगा वो उसको। बोलते हैं ना सर, धंधे में मारवाड़ियों और सिंधियों के पास आज ज्यादा दिमाग होता है, उन दोनों का कंबाइन कर देंगे ना, उससे भी ज्यादा दिमाग सरकार के पास है आज की डेट में। आखिरी के जेब से पैसा निकाल लेती है पूरा। वो 100% है, आज की बहुत डेट ज्यादा है। में सर 90% से ज्यादा केसेस जो डिपार्टमेंट में चल रहा हो, इनपुट टैक्स रेट के ही चल रहे हैं, और किसी मैटर की लिटिगेशन ही नहीं है। अभी वो कार का एक जो आप बोल रहे थे, तो कार है हम लोग खरीद रहे हैं, वो चाहे आप कमर्शियली उसको मतलब वहां पर आरटीओ में करवा लीजिए, तो उसमें 2 लाख रुपए उन्होंने बढ़ा के रखा हुआ है। अगर यहाँ या तो वहाँ दे कहीं ही ना नहीं कहीं वही बोल रहा हूँ आपको, प्लानिंग का ही मैटर है कि आप कौन सी चीज में आपको ज्यादा बेनिफिट यानी है, वो आपको आप पैसे देखिए। बचना ही नहीं है सर, यहाँ से कर लीजिए या वहां से कर लीजिए, देना ही नहीं है आपको। इधर आप देख लीजिए, आपको डेप्रिसिएशन में फायदा मिल रहा है कि जीएसटी में मिल रहा है। नहीं मतलब वही है, अभी कहीं से भी कान पकड़ो जाना वही है। कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस के क्वेश्चन है जो बेस्ट पॉसिबल सूट करता है एक्चुअली। बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे प्लानिंग भी काम नहीं आती एक्चुअली, कहीं ना कहीं वो करना इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। वो चीजें सोचना तो छोड़ दिए ना सर। माइक्रो लेवल पे एक्चुअली होता भी नहीं कई बार काम। एनी मोर और वी कैन कंक्लूड विद दिस सेशंस, व्हाटएवर यू सजेस्ट। So with this, I'd like to thank Sachin sir for a very insightful session on input tax credit rules under GST, and special thanks to Naresh sir की उन्होंने काफी अच्छा question and answer session को lead किया, and we hope to conduct such similar interactive session with VI in futures to come. Now I request everyone to join us for a very small group photo. And so obviously Pranav sir is our own mentor, so definitely no doubt that he is one of the star speaker in our mentors group at INPED.